हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हमारे साथ हैं जितेन परमार सर, हु इज द फाउंडर ऑफ ऑरम कैपिटल, विच इज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म। ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 20 years। जितना मतलब मेरी एज है उतना सर को एक्सपीरियंस है, एंड a very well known face on various channels. So sir, over to you. Tell us about your journey, how you started, because I read about your journey that you started in 1990, कि आपका जब आपने नास्डॉक लिस्टेड कंपनी एक आपने बेची हुई, तो व्हाट वाज दैट एंड किस तरह से आपकी जर्नी इंडिया में स्टार्ट हुई? Yeah. So, uh, yeah, I mean, equity investing I'm doing since 1993. So, almost 31 years I've been investing. So, first 10 years was in the US markets. I was in the US from 92 to 99. So, I'm a software engineer by qualification. So, I used to invest in tech companies because I used to work there in the US. And then we started a company in US in 1994. And then luckily we were in a good place with good technology. So we grew rapidly, and in 98, 99, we got an offer to be acquired by a Nasdaq listed company. And I wanted to return back to India, so it everything meshed so well. Uh, and so we sold the company, and then I came back to India in 99. And again, in hindsight, it was probably one of the best exits I've ever had because post that, there was a dot-com crash and all that, everything collapsed. So again, I was very lucky there to get out at the Right right exit time, at right time. right exit at right time. So, so 99, I came back to India. Uh, then started uh, just couple of years because all these years building this company, it really took a toll because we used to work 16, 18 hours a day. सॉरी And फॉर इंटरप्शन सर, अपन थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिक्स रखते हैं ताकि एवरीबॉडी कैन okay, अंडरस्टैंड। श्योर। तो काफी मतलब मेहनत बहुत करी उस 5 साल में वहां पे कंपनी बनानी थी। तो obviously we had zero capital. We started with $2,000. That was the seed capital we had put in, four of us, four partners. ओके। $8,000 के साथ कंपनी शुरू की थी, and we got it to $10 million revenues in just 3 years. And so then we got acquired. So, but obviously when you do this, it takes a toll also on your health, on your mental balance, this thing. So exit के post आने के बाद I just kind of relaxed for just 1 or 2 years. मुझे जहाँ जहाँ घूमना था वहाँ घूमना या सारी वगैरह। इच्छाएं So पूरी कर ली and आपने। yeah, and 2001 में I started investing into real estate because luckily I had got uh, money to retire that time in life. So early in life, at 30, I was uh, in a situation where I could retire, sort of. I mean, retirement money mil gaya tha. I didn't retire, obviously, but so I wanted to basically safeguard the capital I had. So bought into real estate properties which were rent yielding and all that. Luckily, that timing also was good because real estate boom India में उसके अच्छा बाद ही था। शुरू हुआ. So we also became a real estate developer, uh, and we have company. We still do that. I mean, that is one of the things I still do. Obviously, it takes away very little of my time because we do one project at a time, but we still do that. Uh, so went into real estate. 2003 is when I started investing into equity इन्वेस्ट। in the Indian markets. और ये पीरियड में मैं थोड़ा सीख रहा था बिकॉज आई ऑब्वियसली बीइंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, बैलेंस शीट्स वगैरह मुझे कुछ समझता नहीं था। यस यूएस में भी इन्वेस्ट कर रहा था, तो इट वाज टेक इन्वेस्टिंग बेसिकली। सो यस। कंपनीज जहाँ पे टेक्नोलॉजी समझ में आ रही है वो कर रखते थे। मतलब लकीली इट वाज डिसेंट एक्सपीरियंस, बट इट वाज नॉट बोलते हैं ना नॉलेज वाला इन्वेस्टिंग नहीं था कि बैलेंस शीट देख के किया है या कुछ। फंडामेंटल्स के बेसिस पे नहीं था, फंडामेंटल्स के बेसिस बिजनेस पे के नहीं, बेसिस पे था। बेसिकली ऑन बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी के, हाँ यार ये कंपनी का ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा करने वाला है या कुछ, तो ये तो वैसे टाइप के। तो इट वाज फेयरली डिसेंट एक्सपीरियंस बट नथिंग ग्रेट, क्योंकि बिना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैलेंस शीट और फिनेंशियल्स का ये था।
It was a fairly decent experience just because of the technological background we had. और हम Yes. लोगों ने लकीली ये किया कि वी इन्वेस्टेड ओनली इन टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हमको समझता था एटलीस्ट. Okay. So obviously I didn't lose money. I made some money there also definitely. But India आके then I thought that equity investing is something which I want to do. पावर ऑफ इक्विटी तो मुझे बचपन से ही पता था बिकॉज माय फादर यूज्ड टू इन्वेस्ट इन आईपीओ. तो Okay. मेरे फादर के पास आए मतलब HUL फॉर एग्जांपल आईपीओ के टाइम से अभी भी है. अच्छा. ट्रेंड ही है एंड ऑल दैट. सो ही उन्होंने इन्वेस्ट किया एंड टाटा मोटर्स एंड मे बी होस्ट ऑफ अदर कंपनीज ही हैज. तो तो वो इक्विटी का वैल्यू और वो मतलब उस वक्त तो 10 रुपए में मिलता था शेयर. इट वाज एट ऑलवेज एट पार एंड ऑल दैट. और वो कई गुना होते थे मतलब इवेंचुअली ऑल द गुड कंपनीज. तो तो उसका पावर इक्विटी का पावर तो मैंने मतलब व्हेन देखा आई हुआ वाज था, ग्रोइंग आई एक्सपीरियंस कुड था सी. आपका. हाँ. तो आई ऑलवेज वाज ड्रॉन के इक्विटी तो मुझे करना ही है. तो जब टाइम मिला तभी मैंने सब सीखा पढ़ना शुरू किया. So 2001, 2, 3 was when I was basically learning how to read balance sheets, financials में क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए. अभी भी सीख रहे हैं लेकिन उस वक्त सीखना शुरू किया. एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग ली एंड 2003 से इन्वेस्टिंग शुरू किया इंडिया में. एंड ओवर द पीरियड साइकिल्स पे मतलब विद एक्सपीरियंस साइकिल्स समझना शुरू किया. And I kind of sort of developed a niche in cyclical investing over the years. Obviously, making mistakes, mistakes करके सीखे. और since 2016-17, I've been trying to disseminate whatever I have learned, making mistakes to the investing world, इंडिया में एटलीस्ट के मैंने जो सीखा है वो मैं एक्सपीरियंस मेरे शेयर कर रहा हूँ और क्या देखना चाहिए क्या नहीं. दैट आई विल ट्राइंग टू डू. सो दैट इज माय जर्नी. 2018 we started Aurum Capital, me and Nitin Dharmawat, Okay. or we are a research analyst firm, and that's been it's been a great journey with Aurum Capital also. Okay. So that's my story. Great to hear that, sir. Because it's like एक इंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा है एंड देन फिर उसके बाद अलग अलग चीजें आपके जो जर्नी में हुई. आपने रियल एस्टेट का साइकिल भी देखा, .com भी देख लिया, एंड देन you have a set of experience because you are into the markets since last 30 years. So you had seen like 4 to 5 big ups and downs. So I have read that you have a value investing philosophy, which Warren Buffett used to follow, or there are a lot of investors used to follow. But you come from the tech background, and वहां पर तो आप अगर देखोगे, जैसे आज भी हम अगर न्यू एज इन्वेस्टिंग की बात करें तो पीपल आर जस्ट फॉलोइंग कि भाई धीरे धीरे प्राइस टू अर्निंग के मल्टीपल से हम प्राइस टू सेल्स के मल्टीपल पे आ गए हैं. धीरे धीरे थिंग्स आर चेंजिंग. इफ फॉर अ टेक पर्सन, even from the investing standpoint. So how why you chose value investing ही क्यों? So again, Marwadi हो तो अच्छा. So I am also Marwadi. so basically शुरू से हम मतलब मारवाड़ी as a community, as a caste, we are always kind of हम लोग वैल्यू तो शुरू से बचपन से देखते ही आ रहे हो. So I mean basically I've always believed in paying the right price for the right asset. और undervalued मिले तो वो अच्छा ही है. That is what is ingrained into us, maybe from childhood or something. So natural draw था value investing. And Yeah. again, it kind of started working over the years. Over last 3 decades, it has worked very well. Or there will be periods like 2018-19 when value investing मतलब सो रहा था basically in a way. मीम बन रहे थे, सब कुछ था. बट वो पीरियड तो सभी टाइप की इन्वेस्टिंग में आते हैं. इवन इन ग्रोथ यू विल सी. हमें ग्रोथ में अभी वेकेशन चल रहा है लास्ट 3 साल से फॉर एग्जांपल. सो तो एज आई से इन्वेस्टिंग साइकिल्स आर आल्सो सिक्लिकल. मार्केट्स में मार्केट साइकिल्स चलती है जहाँ पे इन्वेस्टिंग साइकिल्स की भी सिक्लिकलिटी आती है. सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू बाइड योर टाइम ड्यूरिंग दोस पॉइंट में.
I don't want to change my investing style to suit what is in the flavor and all that, because उस वक्त जब आप फॉर एग्जांपल वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं चल रही है, तब आप देखो कि आप अगर ड्रॉडाउन आ रहा है तो कम में कम आवे, आना तो है ही है ड्रॉडाउन, बट यू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड सो ऑन। Over the years, मैंने थोड़े महीनों पहले एक स्पेस करी थी, तो उसमें आई थिंक इट वाज इन अगस्त और सितंबर और समथिंग, तो मतलब किसी ने पूछा कि भाई मार्केट का, मैं बोला यार आई एम इन्वेस्टेड बिकॉज बबल तो है, फ्रॉथ है, बट ये कितना बबल बड़ा होगा मुझे भी नहीं पता है टू बी ऑनेस्ट। सो आई वांट टू से इन्वेस्टेड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज मिटिगेट के भाई मैं जब गिरे मार्केट तो कम गिरूं, बट एट द सेम टाइम इतना लास्ट 4 साल में मतलब हम लोगों का पैसा बना है, तो 30% चला ही गया, मेरा ड्रॉडाउन मिल गया, तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। I'm So, okay. so that preparation also helps. Basically, temperament and your behavior is most important in investing, I think. So Behavioral value investing में draw investing. मतलब basically वही था कि try to buy a dollar asset for 30 cents, 40 cents. ये philosophy थी शुरू से। The core philosophy of value investing की undervalued assets को खरीदना है timely. Sir, so maybe we, I also on the same page कि right price ही pay करना चाहिए, because I am also मारवाड़ी, so I come from the same background कि किसी भी चीज के ज्यादा पैसे नहीं देने, कुल मिला के आपको चीजें मिल जाएगी, थोड़ा टाइम आगे पीछे लग सकता है, बट चीजें मिल जाएगी। तो उसी से अनदर क्वेश्चन कम्स विच इज द मेन क्वेश्चन ऑफ दिस कन्वर्सेशन कि हमें किस प्राइस पे खरीदना चाहिए, और वेदर स्टार्टिंग वैल्यूएशन मैटर्स और नॉट। जब हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम पहली बार प्राइस पे कर रहे हैं किसी कंपनी को लिए, या आप कब जब एक नई कंपनी खरीदते हैं, तो हाउ यू डिसाइड कि यार इस प्राइस पे ये चीज सही है, देयर इज सम थॉट प्रोसेस और सम बिहेवियरल things are there, so I just want to understand ki how you think about this thing. So I strongly believe starting valuations matter a lot, because I'll tell you, though I hold some companies even for 20 years, okay, but generally I would want to hold companies for 3 years, 4 years, 5 years, and then exit if where my risk reward is not in favor. Okay, that is what my core philosophy will be. Even the companies which I am holding for 20 years, I've held multiple ins and outs in that. So ऐसा नहीं है कि वो 20 साल लेके भूल गए हैं या कुछ नहीं, उसमें हम लोग ने बहुत सारी एक्शन करी है। मे बी आई एम स्टिल होल्डिंग इट, बट मल्टीपल एक्शंस हैव हैपेंड दिस थिंग। सो वो तो होता ही है, वो होना ही चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव लिमिटेड कैपिटल, आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, आपको आपका कैपिटल रिस्क के पर्सपेक्टिव से क्या रिवॉर्ड दे सकता है, वो कांस्टेंट इवैल्यूएशन एक रहता ही है। सो बहुत बार ये होता है कि कंपनी ए है, कंपनी बी है, सेम सेक्टर में, कंपनी ए आपके पास है, बहुत अच्छा चल गई है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो देयर आर कंपनीज जहाँ पे ट्रांसफार्मर में जो बहुत बढ़िया रिटर्न दे चुकी है, लेकिन अब वैल्यूएशन बहुत हाई हो गए। उसी वक्त देयर इज अनदर कंपनी इन ट्रांसफार्मर, अगर आपको फिर भी अच्छा लग रहा है कि ट्रांसफार्मर सेक्टर अच्छा है, या आपकी कंपनी बहुत महंगी है, फिर भी आपको पता है कि सेक्टर में टेलविंड से और अच्छा करेगा, सो बट देयर इज ऑप्शन कि भाई ये दूसरी कंपनी है जहाँ पे शायद कुछ चीजें हो रही है जो मे बी इट इज नॉट देयर इन द पब्लिक डोमेन। आपने स्कैटरलॉग से पता की, ऐसा कुछ कभी कभी इंसाइट्स मिलते हैं आपको, हम्म। या फिर कोई नई कंपनी है जहाँ पे अभी तक कवरेज नहीं है, ये ऐसी, सो यू बहुत सारी विल कंपनी गेट होती रिलेटिव अपॉर्चुनिटीज विद इन द है। सेम सेक्टर ऑल्सो लॉट ऑफ टाइम। एग्री। तो वैसे जब होता है तभी आप निकल जाते हो उसमें से, आपके बड़े विनर से भी। सो आई एम ऑलवेज ऑफ दैट बैंड के नो कंपनीज फॉर एवर। आपको जब वैल्यूएशन अनटेनेबल हो जाए और बेटर अपॉर्चुनिटी है तो आई डू दैट डेफिनेटली, मतलब बिल्कुल करता हूँ कि आई विल बी ब्रूटल इन सेलिंग इवन माय बेस्ट विनर्स इफ आई फाइंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी जहाँ मेरा रिस्क रिवॉर्ड बेटर है, एज सिंपल एज दैट। ये मुझे लगता है कि मुझे 15% देगा आगे से यहाँ से, एंड आई सी अ पोटेंशियल अदर कंपनी विच कैन गिव मी 25%, आई विल स्विच। So ओके। that is how it works for me. Or coming back to the question of starting valuations, maybe I did अभी मैंने क्लास ली थी एमडीआई के लिए जस्ट couple of weeks back, तो उसमें मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया था, मे बी इफ दैट गोज वेल विद इट आई कैन शेयर अ फ्यू स्लाइड्स। या प्लीज प्लीज।
Yeah. So just a second. So can you see my screen? Yeah. Yeah, sir. It's visible. Okay. So ये मैं हर साल एक क्लास करता हूँ एमडीआई के लिए, बेसिकली Which one, sir? एमडीआई गुड़गांव, Okay. उनके लिए मैं आई टेक अ क्लास फॉर देयर स्टूडेंट्स ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड Okay, प्रैक्टिशनर sir. इनसाइट्स. तो Great to hear that. yeah, so this is just November में क्योंकि अभी. So again, since we are going to talk about maybe कोई स्टॉक्स की बात कर ले हम लोग शायद, Yeah. तो आई वांट टू गिव अ डिस्क्लोजर आल्सो के बिल्कुल एजुकेशनल है, दिस पर्टिकुलर होल सेशन इज एजुकेशनल, I also put in एब्सोल्युटली the नो बाय सेल. description. ओके. सो दिस डिस्क्लोजर हैज टू बी देयर. सो खैर इस पे हम बाद में आ जाएंगे, बट आई विल जस्ट गिव यू सम एग्जांपल्स. ओके. सो ये Okay. जहां पे मैं बोलता हूँ ना कि मार्केट साइकिल्स कैसे अफेक्टेड और स्टार्टिंग वैल्यूएशन क्यों मैटर करते हैं. Yeah. सो जस्ट सी दिस क्वालिटी कंपनी डू वेल फॉर, मैं दो एग्जांपल दूंगा इसमें. वन, द अर्निंग्स ग्रो 20% Okay. and the second company the earnings grow 47% for the last 3 years. What Okay. happens to the price? Okay. और एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी प्रॉफिट have gone 15 times in Okay. last 3 years. Okay. Now what happens to the price? So here, so this is the company where इसमें हाँ last 3 years grown at 20%. 20%. And So what would be the stock price CAGR? Okay. So here it is. Stock price CAGR is -8%. Okay. negative 8%. Negative 8%. Now, so why does, and in fact the funny thing is इसका 10 year का profit CAGR is 14%. So in last Yes. 3 years it has actually outperformed what it was doing for the last 10 years. और so the 10 years के return देखोगे तो still they are 14%. Okay. Yeah. So ये They are still actually okay. हाँ आ गया. तो बेसिकली ये है कि ये क्यों हुआ, why this has happened is because starting valuation 3 years back Yes. were not this. ये stock 100 PE पे चला गया. So a stock growing at 14%, 15% CAGR प्रॉफिट जो कर रहा है उसको आप 100 का मल्टीपल दोगे, भले कितने भी क्वालिटी कम है. आई थिंक एवरीबडी Yes. वुड हैव गेस्ड व्हिच कंपनी इज दिस. Yeah, yeah. इसमें नाम लेने में भी कोई नहीं है. दिस इज एशियन पेंट्स. Yes. तो क्वालिटी कंपनी मतलब हाईएस्ट क्वालिटी की कंपनी है, लेकिन इतनी अच्छी कंपनी भी आपको लास्ट 3 साल में नेगेटिव रिटर्न दे सकती Negative है return दिया डिस्पाइट last ग्रोइंग द 3 years. प्रॉफिट्स. सो Agree. दिस इज वन एग्जांपल. So, and I had put out a post on this. If you see, I've highlighted the Yeah. date also, July July 21. 21. So मैंने ये लिखा था कि 10 year sales growth was 11%, profit growth was 14%, and the CAGR, stock price CAGR was 25%. तो 25%. पूरा फ्रंट एंडिंग हो गया था बेसिकली. सो मेरा क्वेश्चन ये था कि who is going to see in long term आपका प्रॉफिट ग्रोथ और आपका स्टॉक प्राइस सीएजीआर विल हैव टू मैच. ये होता ही Yes. है. ओके. इस सर्टेन पीरियड आएगा, बीच में पीरियड ऐसे आएंगे जब पे ओवर वैल्यूएशन होगा, अंडर वैल्यूएशन होगा, वो सब होगा, लेकिन Yeah. लॉन्ग टर्म में मैच होना ही है. एंड यू वोंट बिलीव, इसमें अभी बिल्कुल थोड़े दिन पहले प्रॉपरली 10 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ और 10 ईयर ये मैच हो गया. Same, exactly same हो गया था. Result एग्जैक्टली के time सेम I आया. think. सो ये होता है. Agree. अगेन दिस इज द एनबीएफसी, अगेन Okay. हाईएस्ट क्वालिटी. ओके. इसमें भी आप देखोगे 5 years Similar. profit has grown, 3 years profit has grown 48%, 48%. which is even higher than the 5 year this thing. और इसका 10 Yeah. year का profit growth is 32%. Okay. Great. So last 3 years it has grown profits at 48%, but stock return is -2%. Negative Now, 2%. this is Bajaj Finance. Okay. Yes. And your returns are negative. Why? Because वो 9 price to book पे था. Yeah. Okay. Valuations were very high, untenable. तो जब ये सब Agree. होता है तो आपका टाइम करेक्शन तो आना ही है, इफ नॉट प्राइस करेक्शन. सो ये सब चीजें, इसीलिए आई ऑलवेज से स्टार्टिंग वैल्यूएशन मैटर अ लॉट. 8%. Agree. मतलब
आप बोलोगे कि यार मैं तो 10 साल के लिए लिया हूं, लेकिन 3 साल तक जब आपको क्वालिटी कंपनी रिटर्न नहीं देगी तो यू विल फील द पिंच। और बाकी लोगों ने 70-80% CAGR बनाए लास्ट 3 साल में, बहुत सारे पोर्टफोलियोज ने। और तब आप अगर ये लेके बैठे हो और 3 साल में आपका नेगेटिव रिटर्न है, तो इट विल हिट यू अ लॉट। मतलब या कोई बोले कि भाई लॉन्ग 100%। टर्म, लेकिन ये फैक्ट्स है। इफ आई वर इन्वेस्टेड इन दिस कंपनीज, आई वुड वरी अ लॉट, राइट? एग्री, तो क्योंकि गोल्डन पीरियड मैंने प्रॉफिट्स और गवा दी। फंडामेंटल्स तो बढ़ रहे हैं। हाँ, तो कंपनी अच्छा करे, अच्छी कंपनी अच्छा करे, और आपको रिटर्न मिलेगा रिटर्न ऐसा भी मिल जरूरी नहीं है, अगर आपने गलत प्राइस पे लिया है तो। इट इज वेरी वेरी क्लियर। इवन आप 5 इयर्स के रिटर्न भी देखोगे तो 10% CAGR है यार। इट्स नॉट मच, नॉट मच। वेरी वेरी लिटिल। Yeah, because against your 30% profit CAGR, you are just getting 10%. It's एग्जैक्टली very तो minute. यही होता है, 33%. मतलब दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि आप लोग जब, बहुत लोग हमें देखते हैं, मैं देखता हूँ कि 100 के पी के 150 के स्टॉक दे रहे हैं। तो आप ये सोचो कि आप कितना मतलब फ्यूचर का ऑलरेडी पे कर रहे हो उसमें। सो Agree. यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, अदरवाइज दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स हैपन इवन इन द बेस्ट ऑफ कंपनीज। इन Yeah, कंपनीज yeah. से अच्छी कंपनीज है नहीं मार्केट में। आई आई वुड लव टू ओन दीज कंपनीज, ओके। Agree, sir. एंड देयर आर मेनी कंपनीज विच वी ओन नाउ। I will give examples like HDFC Bank, Kotak. We own now. We recommended this, but we waited. We waited for that period of that When? overvaluation to get over, and then we recommend. So that is what Yes. we, and buy also same thing. I mean, I will do with my personal portfolio also. I will buy only when my valuations are in favor. So Correct. this is another company, uh, and I'm happy to Transformer say company. that this is one of the my biggest winners in life. Uh, so this is a transformer company. Since I still hold it, I will not like to name the company. But uh, No worries. the thing is, this company had, you know, for many years, capital goods was in a down cycle, 7-8 years. Okay. और 2021 के बाद इसमें उसके बाद चलना स्टार्ट हुआ। increase हुआ. Okay. And when tailwinds came in favor, you see what has happened. Profits have grown up 15 times. 15 times in the last 3 years. लेकिन इसका वैल्यूएशन, स्टार्टिंग वैल्यूएशन इतना लो था. So this company was available at 80 crore market cap. Okay. Today it is at 6,500 crore market cap. Oh, So so the price has gone from 80 times. 105 to 8,000, almost 8,000. 80 times. Okay. तो आपका Sure. प्रॉफिट ग्रोथ तो यहाँ पे 15 टाइम्स हुआ है, लेकिन प्राइस अप्रिशिएशन, Price तो up आपने 80 times. आपने अंडर वैल्यूएशन में लिया है, तो आप यू गेट अ पी एक्सपांशन एंड far more returns than even the profit growth. So this is Agree. the example from another side where, you know, this thing. So abhi, now the question is, do I still own it? Would I recommend to anybody to buy this stock? No, because No. abhi valuations बहुत high हो गए इसके. Okay. Hmm. So if somebody is buying, वो मुझे exit देके जा रहा है, to be honest. Okay. Yes. Okay. So that's why I'm saying कि you have to be very very careful. अब ये ओवर वैल्यूएशन के जोन में जा चुका है, जो Agree. उस कंपनीज का 3 साल 4 साल पहले था. सो अगेन, कंपनीज आर नॉट कंपेरेबल बिकॉज वो क्वालिटी कंपनीज है, लेस सिक्लिकल है, Small ये cap. सिक्लिकल है, बट trying to give an example where, you know, you can get disproportionate return also if your entry valuations are good. So that's why I always say starting valuations matter a lot. तो आई थिंक मैं आपके क्वेश्चन को मैंने थोड़ा इलस्ट्रेशन के नहीं साथ और कुछ एग्जांपल नहीं, के इट्स साथ. वेरी हेल्पफुल सर, बहुत अच्छे से समझ में भी आया, और एग्जांपल होते तो सर और बेटर, यू नो, या बेटर प्रेजेंटेशन मिलता है। मतलब आप ढूंढोगे तो आपको बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे लार्ज कैप में, एग्री। क्वालिटी कंपनीज में सिमिलर स्टोरी जो बजाज फाइनेंस, जो सिमिलर एशियन पेंट्स के सिमिलर। साथ हुआ, वो बहुत सारी कंपनीज के साथ हुआ है, ऑल और क्वालिटी कंपनी, निफ्टी 50, और सर निफ्टी 50 कंपनीज के साथ हुआ है, मतलब बहुत वही। सारी. यस यस यस. और 18-19 में ऐसा था कि निफ्टी 50 के मतलब उन 15-20 कंपनियों के अलावा और किसी को कुछ देखना भी नहीं था. सो हाँ। दैट इज व्हेन अपॉर्चुनिटीज अराइज, राइट? तो आपका यस। कॉन्ट्रेरियन बैंड उसी वक्त तो होता है कि आप देखो, बिकॉज आपको, मतलब जैसे वो ट्रांसफॉर्मर कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, तो मतलब इट वाज बिलो इट्स वैल्यू ऑफ द लैंड एंड द प्लांट इट होल्ड्स, मतलब उसके कम वैल्यूएशन पे आपको वो कंपनी मिल रही थी, डेट फ्री मिल रही कंपनी ऐसा. है। तो या
सो यू हैव टू टेक एडवांटेज, एंड वो आप थोड़ा कॉन्ट्रेरियन सोच की वजह से आपको मिल सकता है। एग्री 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 सर। तो सर ये तो इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आपको स्टार्टिंग वैल्यूएशन हमेशा आपको वो देना होता है। Sorry. सर कैन यू Yeah, प्लीज yeah, स्टॉप शेयरिंग दिस? yeah. Okay. Yeah, yeah, I'll stop. सो सर ये तो समझ में आ गया कि काफी इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग वैल्यूएशन। नाउ अगर लाइक एनीबडी, एनी रिटेल इन्वेस्टर हु वांट्स टू अंडरस्टैंड और हु वांट्स टू यूज द वैल्यू इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क, सो व्हाट आर योर कोर थिंग्स कि हमको यार ये पर्टिकुलर मेट्रिक्स और पर्टिकुलर पैरामीटर्स में जब भी एक कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, एट अ स्टार्टिंग पॉइंट कि भाई आपने स्क्रीनर किया, कोई स्क्रीनर बनाया, आपने स्क्रीनर में डाला, सिस्टम में डाला, यार ये पर्टिकुलर 4 या 5 चीजें तो मैं बेयर मिनिमम है कि ये मुझे देखनी ही है। It depends on sector to sector, but what are the few things which you take initially? हाँ, so उसकी एक मेरी एक स्लाइड है, स्टॉक इवैल्यूएशन टूल किट हम लोग जो बोलते हैं। Okay, अगेन आई विल शेयर माय स्क्रीन। no worries, sir, no worries. So I think, Okay. yeah, so अच्छा, evaluation, okay, evaluation okay, toolkit. so this is what we generally do uh, whenever we want to, basically uh, look at a company. uh, आपके बेसिक चेक्स में अभी ओवर द इयर्स लकीली इतनी समझ आ गई है कि हम लोगों को मतलब स्क्रीनर, गॉड ब्लेस आयुष एंड प्रत्युष, इतना बढ़िया टूल हमको दिया हुआ है कि Agree, agree. मतलब टचवुड हम लोगों को मतलब एक इनिशियल एक 15-20 मिनट एक लगते हैं कि एक बेसिक देखने के लिए कि इस कंपनी में और आगे अंदर जाना है कि नहीं जाना है, वो नहीं पंद्रह बीस जाना। मिनट में हमको पता चल जाता है, टू बी ऑनेस्ट। अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस के साथ में कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है वो सब समझ में आ जाता आता है है। कि ये तो वो एक इनिशियल स्क्रीनर इज अ गॉड सेंड। तो उसमें देख के पता चल जाता है कि भाई इस कंपनी पे आगे काम करना है कि नहीं करना है। ओके। अगर तो वो, कोई कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आप देखते हो कि भाई ये मैं मिनिमम देखता ही हूँ? हाँ तो हम लोग एक का, let me see, one एक second. एग्जांपल अगर हम ले सके तो। Just give me a second. Just give me a second. मेरे को नो वरीज, नो वरीज। open the screen which is, तब तक सर अगर आप हमें बता पाएं कि कितने so स्टॉक्स मिनिमम होने चाहिए या आप कितने स्टॉक्स ओन करते हैं एक पोर्टफोलियो में जनरली, so अगर एक इन्वेस्टर जो जिसका एक तो है जो इन्वेस्टर फुल टाइम इन्वेस्टर है, और एक जो फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं है, एक सैलरीड इंडिविजुअल है जो करता रहता है। हाँ so देखो ये तो एक बोलते हैं ना कि अलग अलग कंपनीज के, सॉरी, अलग अलग इन्वेस्टर के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। जिसे ना रिस्क होती है। इफ आई एम लेट्स से 30 years ओल्ड, आई हैव लॉट ऑफ फ्यूचर इनकम जनरेटिंग, तो मैं थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता हूँ। इफ आई एम एट माई एज, मतलब आई एम 55+ फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम, मेरे फुल टाइम इन्वेस्टर हूँ, माई परस्पेक्टिव विल बी डिफरेंट, आई विल नॉट टेक कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स दैट मच, मतलब मेरा थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा। आपके पोर्टफोलियो साइज पे भी डिपेंड करता है, दो देर आर some investors who are large investors but are highly concentrated, but that's rare. Most of the large investors I've seen are fairly diversified. So ओके for me, I will say, uh, I will have 20 stocks which will have a 80% weightage. Okay. And ओके। I'll have another, so that is core basically. कोर एंड And, सैटेलाइट। maybe another 20 stocks where I will have like 1% kind of positions, uh, ओके uh, which obviously आर इन स्टेज वेयर आई, वो 1% से जीरो जाएगा या फिर 5 पे लेके जाना है मुझे वो। सो इट ओके विल ऑलवेज बी लाइक दैट। एंड वो जो सिक्लिकल में हम जब करते हैं, व्हेन आई डू पीक पेसिमिज्म बाइंग और कॉन्ट्रा सिक्लिकल करते हैं, वेयर हम लोग एकदम बिल्कुल बोलते हैं ना कि सबसे खराब टाइम पे लेने की कोशिश करते हैं उसकी, तो तब हम लोग 1% बैठ लेते हैं। हाँ, गॉट सो इट।
So those 20 stocks will be like that. Okay. जो जो मुझे आगे बढ़ाने हैं या मैंने ट्रैकिंग के लिए लिए है, और या तो मैं जीरो करूंगा उसको या फिर 5 पे लेके जाऊंगा। गॉट इट। वो एनीथिंग विच मैराथन वाले स्टॉक्स हैं जो एनीथिंग लंबे। विच आई कैनॉट टेक टू 5%, वो मैं हम्म। लूंगा नहीं। जहां पे मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं 5% तक नहीं लेके जा सकूं उसे, तो वो मैं हम्म। स्टॉक लूंगा भी नहीं। गॉट इट। So 5% is kind of my ideal bet. So essentially 20, मतलब I would say 20 stock portfolio, 5% each kind of, वो वेटेज तो चेंज होता है प्राइस मूव के साथ इवेंचुअली। या एग्री। तो 5 एग्री। आराम का कभी कभी 15 भी चला जाता है, कोई बहुत हम्म। बड़ा विनर आपको नीचे भी मिल आने। गया तो होता है। और उसके बाद फिर आपके पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से आप उसको कट करते हो या जो भी है, और लेट इट राइट, डिपेंड्स। बट जनरली आई विल नेवर गो इवन प्राइस एप्रिसिएशन से। मैं 5% बेट वाला, मेरा अगर 20% हो गया तो आई विल ब्रिंग इट बैक टू 15 ओके। एटलीस्ट। मतलब तो 20 के ऊपर मैं जाने नहीं दूंगा कभी, इज व्हाट गॉट आई इट। सेक्टर वाइज एक्सेप्ट फिनेंशियल्स आई विल नॉट गो बियॉन्ड 20 to 25%. ओके 25% सेक्टर वाइज is, ऑल्सो। financials is something, since it is a very large sector, maybe I know I can go to हम्म। 30% also in financials. ओके। Okay. So that is how I do my allocation. So it is very, very important for large portfolios and for people who are full time into investing, who don't have a secondary source of income. यस। के लिए डाइवर्सिफिकेशन एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अभी ये कल परसों आई थिंक आप, मैंने भी ट्वीट किया है था, आप लोगों ने भी आज कुछ ट्वीट किया था, एक्सीडेंट ऐसे हो जाते कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू कुछ आ गया और आपका बहुत बड़ा पोजीशन है, तो यू आर स्टक। मतलब स्टक कंप्लीटली। आप फंस सकते हो, नीचे का सर्किट लग गया, या एक आज एक कोई फार्मा कंपनी ने कुछ एक कांड कर दिया बेसिकली, तो लोअर सर्किट आप निकल भी नहीं सकते हो, एंड इफ इट इज अ लार्ज कुछ नहीं कर सकते। position, then matlab, as I've seen, these are the type of events which take you permanently out of the market. तो यस ऐसा यस कुछ यस नहीं एग्री। करना चाहिए जो आपको परमानेंटली मार्केट से बाहर नहीं ले जाए। बाहर निकालना है। या तो मैंने भी ये 20 सालों में बहुत करी है, वेयर यू नो आई हैव कॉम्प्रोमाइज लेट्स से ऑन मैनेजमेंट। मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स हैपन व्हेनेवर आई हैव कॉम्प्रोमाइज ऑन मैनेजमेंट। कंपनी यस। अच्छी है लेकिन मैनेजमेंट खराब है, तो उसका आउटकम ज्यादातर खराब होता है, ये मैंने सीखा एग्री। है। एंड दैट इज व्हाट वी हैव बिल्ट इन द प्रोसेस, कि हम लोग मतलब ये देखते हैं कि मैनेजमेंट अच्छी हो, मैनेजमेंट शुड बी माइनॉरिटी शेयर होल्डर फ्रेंडली, बहुत यस इंपॉर्टेंट। आई थिंक दैट इज आवर दैट्स वेरी टॉप इम्पोर्टेंट। प्रायोरिटी टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस। फॉर एग्जाम्पल क्या लूँ, मैं वो सोच रहा था। आई डोंट सो We can take any mid-cap company also. No worries. I'm just taking something which I don't want and which I probably, you know, and then you can also ask me, I can give some live demo of some Okay. companies जहाँ मैं क्या देखूंगा, या Mm-hmm. this thing So again. we can take something like this कोई वेगन वाली कंपनी ले लेते रेलवे। Everybody will Yeah, so we can take something like that. जुपिटर वेगन टाइप्स या टेक्समाको रेल या ऐसा कुछ ले लेते। Though I don't track them very closely, but I will say कि अगर मुझे देखना है तो मैं क्या हाँ देखूंगा। अगर आप जैसे देखते हो तो यू नो हाउ यू के रिमूव द थिंग्स कि यार भाई ये चीज है तो आई अवॉइड, या दिस इज द थिंग विच आई लाइक। सो दिस इज लाइव डेमो, एकदम बिल्कुल के मैंने देखा नहीं है, और मैं आपके सामने देखूंगा। तो ओके गॉट इट सर। अगेन बजाज हाउसिंग आई फाइनेंस। थिंक ये एक हम कर लेते हैं बेसिकली। सो अगेन दिस इज फैंटास्टिक कंपनी, मतलब सुपर ये है। सुपर लेकिन मैनेजमेंट। लेकिन लेकिन आई थिंक दिस केम एट, मतलब जब लिस्ट हुआ तो 9 प्राइस टू बुक पे था। तो अगेन ये मतलब आई हैड ट्वीटेड ऑब्वियसली विदाउट नेमिंग द स्टॉक एंड ऑल दैट, कि भाई अच्छी कंपनी है लेकिन ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल और नहीं। और ये आप देखोगे कि इट हैज टू करेक्ट, आई डोंट नो व्हेन। ओके, पर ये करेक्ट होने वाला ही है मतलब। यस तो एग्री। लेट्स सी, अभी अभी हम लोग बात करते हैं
आपने बोला था जुपिटर वैगन्स, ओके। यस। सो आई डोंट ट्रैक दिस कंपनी। सो या पहला चीज हम लोग देखते हैं कि यार इसका पी क्या है। पी तो मेरा 57.4। इट्स क्वाइट हाई फॉर एग्जांपल। हम्म। आरओसी वगैरह अच्छा है, ईवी बिटा पे कि इस पे भी ये आई है। है। डेट देख वैल्यूएशन लेते आई। हैं, डेट वगैरह तो मैनेजेबल है, कुछ ज्यादा नहीं है तो ये सब। सो दिस इज आर कस्टम स्क्रीनर। हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं वो सब हम लोगों ने इसमें डाल यहाँ के पर रख ऐड की हुई है दिया। आपने बेसिक, जो भी आप जितनी भी चीजें देखते हो कि ग्रोस ब्लॉक कितना है, सेल्स हाँ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस क्वार्टर, यस, एबिटा, बुक वैल्यू, बिल्कुल। डेट। हाँ, सो दिस इज व्हाट वी सी। मतलब बस इसमें ये है कि भाई ठीक है, कंपनी में डेट नहीं है ज्यादा, आरओसी अच्छा है, यू नो, प्राइस टू बुक इज हाई, पी इज हाई। मॉनिटर ये होल्डिंग। हम लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया। उसके बाद हम नीचे यस। जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको चार्ट्स भी देखने चाहिए, मुझे लगता है। हाइड दिस। सो हम लोग फिर ये भी देख सकते हैं पी रेशियो इसका मीडियन से ओवर द इयर्स। कितना ऊपर है। सो दिस टेल्स दैट इट इज मच हायर देन द मीडियन पी ऑफ यस। 5 ईयर, और अगर हम 10 ईयर देखें तो उसमें भी ये भी। सिमिलर ही है। हाँ, तो ये मतलब ये सीधा सीधा बता रहा है कि अभी ये महंगा है। देयर कुड बी रीजंस एंड देयर कुड बी या। जस्टिफाइबल रीजंस के ये महंगा है, ओके। शायद कुछ टेलविंड हो, बहुत बड़ा ऑर्डर हो, कुछ हो सकता है, तो वो हो हमको सकता जाना पड़ेगा। बट इनिशियल इसमें ये आ रहा है कि ये है। मीडियन महंगा से है। ये महंगा है, ओके। देन यू गो, फिर इसके अंदर अभी क्या है ये, इसमें तो मेरे को लगता है ऑर्डर बुक्स और बहुत बड़ी बड़ी है, ओके। तो हम फिर जाएंगे कि मार्जिन्स क्या है वगैरह। तो मार्जिन्स इसके स्टडी स्टेट मतलब आई थिंक थर्टीन स्टेडी फोर्टीन स्टेट है। से ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। तो यू नो, बट यस, ओवर अ ईयर थोड़े मार्जिन बढ़े हैं इसी, या। मतलब 19-20, और उस वक्त तो आई थिंक सेक्टर ही अच्छा नहीं कर रहा था बिल्कुल। तो बट आई पहले तो थिंक ये सेक्टर। मार्जिन अभी ये हो गए। व्हाट आई फील, ये सेक्टर का जितना मुझे समझता है कि ये मार्जिन पीक मार्जिन है मेरे हिसाब से। इससे ज्यादा ये मार्जिन बना नहीं पाएंगे ये कंपनी, बिकॉज अल्टीमेटली योर बायर इज गवर्नमेंट। यस। तो ज्यादा मार्जिन आपको बनाने देगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद ओके। आपको, नाउ व्हाट यू टू सी, अभी हम लोग ने देखा कि इसका पीई 57 है। नाउ यस। कम्स टू पीईजी। अभी मुझे ये कंपनी अगर समझता है, ओके, और मैं इसका ग्रोथ एस्टिमेट कर पा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, सो इफ फॉर मी आई विल इन्वेस्ट इन दिस कंपनी इफ if I'm certain that this can give a 35% growth year on year for the next 3 years, तो मेरा पीईजी बैठता है लेट्स से 1.5 के आसपास या कुछ। दैट इज द नंबर आई विल बाय कंपनी फॉर अ ग्रोथ कंपनी। 1.5 का पीईजी में बाय कर सकता हूँ, 35-37% का सीएजीआर अगर इसमें मुझे पॉसिबल दिखता है फॉर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, तो मैं बाय करूंगा। वो 1.5 का पीईजी ये मार्केट्स में क्यों क्यों और मैं फॉरवर्ड पीईजी की बात कर रहा हूँ, ये बुल मार्केट से मुझे 1 के पीईजी पे कुछ मिलेगा नहीं अभी। सो आई हैव टू बी ऑल्सो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्टर बिहेवियर इज ऑल्सो सिक्लिकल। या। यही अगर मार्केट करेक्शन मोड में रहेंगे तो आई विल नॉट पे मोर देन 1 मोर देन वन पीईजी, पी। गॉट इट। पीईजी एंड एक कैन से यू ज्यादा मैं कैन नहीं यू दूंगा। हाँ, कैन यू सर प्लीज एक्सप्लेन पीईजी फॉर, मतलब तो सबके लिए। प्राइस अर्निंग ग्रोथ मतलब मेरा ये बोलना है कि अगर आपका पी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पी 30 का है और आप ग्रो ओके। कर रहे हो 20% से, ओके। मतलब मैं फॉरवर्ड पीजी की बात, आपको ग्रो, आप 20% से ग्रो करने वाले हो नेक्स्ट 3 इयर्स, तो मेरे लिए फॉरवर्ड पीजी इज 1.5, 30 डिवाइड बाई 30 20, डिवाइड बाई 20। ओके। सो सिंपल, ओके। अभी ये इसमें 57 का है तो मैं 1.5 देखूंगा तो 35-37 कुछ निकलेगा जो भी है वो। दैट इज 35% की द ग्रोथ ग्रोथ आनी आई चाहिए विल मुझे। नीड फॉर, इफ आई एम सर्टन के नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए ये ग्रोथ ये करेगा, कीपिंग द मार्जिन, वेरी यस। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। टॉप लाइन तो ग्रो कर लेगा लेकिन मार्जिन अगर 10% आ गए तो पिक्चर ही बदल जाएगा पूरा, ओके। तो अज्यूमिंग द मार्जिन रिमेन द सेम, या फिर वो टॉप लाइन ग्रोथ 25% करेगा लेकिन बॉटम लाइन पे 37%, 35% कर 37। पाएगा अगर के मार्जिन एक्सपेंशन का केस है, तो आई विल लुक एट, आई विल कंसिडर दिस कंपनी। ओके। ओके। अदरवाइज आई विल नॉट कंसिडर। अगर मुझे ये लग रहा है कि ये कंपनी 15-20% से ही ग्रो करने वाला है, फॉर मी हाँ। रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट इन फेवर, ओके। क्योंकि मेरा ओके। पीईजी अगर 20 से ग्रो करने वाला तो मेरा पीईजी इज क्लोज टू 3 विच इज वेरी वेरी हाई।
ओके, गॉट हमने इट। एशियन पेंट्स का एग्जांपल दिया था, तो एशियन पेंट्स वाज ग्रोइंग एट 14-15%, पी 100 था, तो द हम्म। पीईजी, ओके, और ये तो पास था, लेकिन फ्यूचर का भी मुझे लग रहा था 14-15% से ग्रो नहीं करेगा वो द नेक्स्ट 10 years फॉर एग्जांपल, राइट? सो मेरे लिए पीईजी वाज अप मोर देन 6, ओके, विच इज नॉट यस। सस्टेनेबल इन माय व्यू, ओके, फ्रेमवर्क। माय फ्रेमवर्क आल्सो। तो सर्टेन पीरियड्स के लिए इट माइट बी सस्टेनेबल फॉर यस। शॉर्टर पीरियड, बट लॉन्गर पीरियड्स में सस्टेनेबल नहीं होगा। तो और एग्री आप लोग ले एग्री। रहे हो मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए ले रहे हो ना कोई कंपनी, तो आपको या उतने का सोचना है कि भाई उतने साल तक वो, मतलब मेरे लिए वो सस्टेनेबल है कि नहीं, द वैल्यूएशन आई हैव बीन बाइंग एट। तो एग्री। इस केस में मतलब ये एग्जांपल में मैं ये देखूंगा, उसके बाद मैं क्या देखूंगा, ये सब तो ठीक है कि इसका ग्रोथ तो आ रहा है अच्छा, इफ यू सी दैट इट हैज ग्रोन वेरी वेल, मतलब हंड्रेड या परसेंट का ग्रोथ, 100%, 50% का ग्रोथ लास्ट 2 साल में आया है इसमें, ओके। एग्री। Now, can this growth continue? If this growth can continue for the next 2-3 years, there is a case. यस। I can say that. Okay. आपके पास वो इंसाइट होना चाहिए कि ये ग्रोथ कंटिन्यू होगा, ये नहीं तो 35% का ग्रोथ पक्का आएगा इसके अंदर, तो आपके लिए ये एक आध बार यू कैन डेल्व इनटू इट। पर उसके बाद आपको क्या देखना है, और भी देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना है, कैश फ्लो। अब यार, ओके, कैश मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट शुड टर्न इनटू कैश, ओके, यस। योर बिटा ओवर कन्वर्जन। अ पीरियड। अब ये या कंपनी अगर मेरे को दिख रही है कि यू नो 350 करोड़ का प्रॉफिट है, ओके, पर कैश फ्लो स्लो नेगेटिव। नेगेटिव, ओके, मार्च मार्च 24। सो दैट इज अ फ्लैग फॉर मी, नॉट नेसेसरली अ रेड फ्लैग बट अ फ्लैग फॉर मी, ओके। तो एग्री। फिर हम लोग देखेंगे इसके अंदर के क्या हो रहा है, कहीं हम लोग ये इसमें जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, देखेंगे कि रिसीवेबल्स तो नहीं बढ़े, सो ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड रिसीवेबल बढ़ और रहे हैं, इन्वेंट्रीज। तो ये सब हम देखते हैं, इन्वेंट्रीज बढ़ी है, ये सब चीजें देखते हैं। बहुत मतलब बहुत सारी कंपनीज में यहाँ पे बहुत सारे फ्लैग निकलते हैं, यस यस यस। कैश फ्लो देखो, रिसीवेबल्स देखो, इन्वेंट्रीज देखो, ये सब देखना जरूरी है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू सम थिंग्स व्हिच वी विल सी। इनसाइट्स। फिर यस। उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि इसके फिक्स एसेट्स कितने बड़े हैं, ओके, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, इससे ये इंक्रीज फिक्स एसेट्स के साथ में ये क्या रेवेन्यू कर सकता है आगे, सो वो सब एस्टिमेशन आपको करने पड़ते करने हैं, पड़ते हैं। तो उसके बेसिस पे आप कॉल लेते हो बेसिकली। एग्री एग्री एग्री। तो आई थिंक सर कैश फ्लो, बैलेंस शीट, अभी पीएनएल का एक बेसिक ओवरव्यू आपको स्क्रीनर पे मिल जाता है, जिससे आप एक स्टार्टिंग पॉइंट्स बना सकते हो। स्टार्टिंग ये तो इसमें मुझे ये आया कि भाई मेरा अभी ये मैंने देखा है 5-10 मिनट में मैंने जो देखा, तो मुझे ये देखा है कि मुझे आंसर चाहिए कि भाई रिसीवेबल्स इतने बड़े हैं, ठीक है, इतना सेल्स बढ़ा है, तो देर इज अ केस के रिसीवेबल्स बढ़ बढ़ सकते हैं, सकते। बिकॉज यार आप 1,000 करोड़ कर रहे थे, अब 3,000 करोड़ कर रहे हो सेल्स, तो रिसीवेबल्स भी बढ़ेंगे, ओके। बढ़ेंगे। तो दैट इज फाइन, मतलब मेरे को लगता है वो ठीक है कि बढ़ सकते हैं, लेकिन इनमें देखना है कि ओवर अ पीरियड, लेट्स से ओवर अ 3 year पीरियड, ओके, आपका जो प्रॉफिट है कहीं ना कहीं वो कैश में कन्वर्ट होना चाहिए। 3 साल के लिए एग्री। अगर नेगेटिव कैश फ्लो आ गए, मैंने बहुत सारी कंपनीज देखी, मतलब जो प्रॉफिट दिखा रहे लेकिन 3-3 साल से कैश फ्लोज आर नेगेटिव, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। फिर वो उनको क्या करना पड़ेगा, क्यूआईबी करना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। और ये मैं देख रहा हूँ इतना ज्यादा हो रहा है क्यूआईपी एंड ऑल दैट, कंपनीज आर ग्रोइंग, फंडरेजिंग तो आम बात हो गई कंपनीज के लिए। बहुत कंपनीज आर ग्रोइंग, बट वो इक्विटी लेके ग्रो कर रही है, इक्विटी डाइल्यूट करके ग्रो कर रही है वगैरह। तो इक्विटी डाइल्यूशन हम लोग थोड़ा फ्राउन करते हैं, मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा इक्विटी डाइल्यूशन इज समथिंग व्हिच वी डोंट लाइक टू बी ऑनेस्ट। तो ये सब चीजें देखनी होती है। अभी कोई एक हमको मेरे को एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि यस बैंक का हम लेते हैं, ओके। सो लोग बोलते हैं अरे यार ये 20 रुपये ही है, ओके। नाउ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस इज नॉट 20 रुपीज, ओके। तो इसका आपको कहाँ जाना है, कहाँ देखना है, आप जाओगे बैलेंस शीट में, आप देखो इसका इक्विटी कैपिटल जो 450 करोड़ हुआ करता था, ओके, 10 गुना। या 460 करोड़ हुआ करता था, अभी हो गया है फाइव साढ़े। थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर ओके। सो 12 टाइम्स इक्विटी डाइल्यूशन हुआ, मतलब हम्म। पहले कंपनी 1 रुपया कमाती थी और डिस्ट्रीब्यूट करती थी, आज उसको 12 रुपया कमाना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट करने के तब लिए, जाके 1 रुपया सेम राइट? डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। आई थिंक ईपीएस में भी दिखेगा वो साफ।
हाँ, कि तो ईपीएस में आपका भी EPS। आपको वो दिखेगा। पर इक्विटी वैल्यूएशन इतना बड़ा हुआ है, मतलब ये हमको आइडिया में, वोडाफोन आइडिया में भी दिखेगा। हाँ तो लोग हाँ बोलते हैं कि यार ये बहुत सस्ता शेयर है, अरे 400 हुआ करता था, अभी तो 20 रुपया है, अरे 20 नहीं है 240 है। हाँ। 12 times equity 20, इक्विटी डाइल्यूशन 40 लोग is नहीं not समझते। 12, 20 rupees. So you have to understand these things, बहुत जरूरी है। सो एंड गुड यू ब्रॉट दिस आउट, बिकॉज मैं ये पहली बार बता रहा हूँ सब जनरली। तो एग्जाम्पल, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये सब एग्जाम्पल्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल। एजुकेशन के हिसाब से दे रहा हूँ। मेरा कोई बाय कॉल, सेल कॉल या होल्ड कॉल कोई भी स्टॉक पे नहीं है। ये समझने के लिए बता रहा हूँ कि भाई इक्विटी डायल्यूशन में क्या होता है, रिसीवेबल्स में क्या देखना चाहिए आपको, उसी एग्जांपल से बता रहा हूँ। यस। सो आप प्लीज डोंट, डेफिनेटली डू नॉट टेक एनीथिंग एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन। Yeah, sir. I also put the disclaimer in the description also. ओके, And another thing is सर, एक और अभी रिसेंटली अगर आपने एक एनबीएफसी में देखा होगा तो एक बहुत बड़ा प्रोविजन क्रिएट किया है, अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़ का। ओके, तो उसमें भी सिमिलर, मतलब उसमें भी अगर आप देखोगे उसमें भी अभी रिसेंटली एक फंड रेज हुआ, उसके बाद अभी प्रोविजन क्रिएट करके दे आर लाइक, उन्होंने भी बहुत बड़ा प्रोविजन क्रिएट किया है। जैसे अगर आपने, अगर हम यस बैंक को भी देखते हैं तो यू नो जब अगर आप ये मार्च 20 वाला अगर आप ईयर देखोगे तो उसमें बहुत बड़ा प्रोविजन और एक एब्सोल्युटली। बहुत, तो तो उससे फिर खत्म हुआ। बट उसके बाद फिर आपका इक्विटी डाइल्यूशन इतना हो गया कि अब आपका, अब जहां पे आपको 12-14 रुपए का आपको ईपीएस दिखता था वो अभी 25 पैसे 45 पैसे हो गया है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, अर्निंग तो आपकी मतलब ये है, अर्निंग आपकी नीचे आने वाली है, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट इज, इट इज ईपीएस ना, अर्निंग पर शेयर है, शेयर ही इतने बढ़ गए तो आपकी अर्निंग पर शेयर अर्निंग्स तो कैसे बढ़ने आएगी? वाली ही है, मतलब उसमें उसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो मैं वही बोल यस। रहा हूँ, ये 20 रुपया नहीं है, आप 240 रुपया समझो। और फिर ये कि 240 रुपये, आप पहले 400 की बात जो करते हैं, तो 400 रुपये का इसका स्टॉक का भाव था, मुझे ध्यान है। यस यस, आई ऑल्सो नो। हाँ, तो ये मतलब ये 20 रुपया नहीं है, ये समझना जरूरी है। And this is what I try to explain to friends also who will keep on asking me about SBI. तो थैंक यू सो मच सर। ये तो हमें समझ में आ गया कि अपन को स्टार्टिंग में बेसिक चीजें क्या क्या देखनी होती है। right. नाउ यू आल्सो एक्सप्लेनिंग कि आप उसके बाद आपका जो इवेल्युएशन क्राइटेरिया और वो Right. लिस्ट कौन कौन तो सी है। तो नाउ विल कम टू दिस स्क्रीन। सो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि ये सब चीजें मैंने अगर देख ली, और मुझे जैसे कि आपने एग्जांपल लिया जुपिटर वैगन्स का, हो तो मैं फिर क्या करूंगा उसके बाद, मुझे ये लगा कि हाँ चलो इसको देखना चाहिए, बिकॉज ये ग्रोथ बहुत सॉलिड दिखा रहा है। ओके, यस। भले P57 है, लेकिन ये ग्रोथ बहुत सॉलिड दिखा रहा है। तो फिर मैं क्या करूंगा उसके आगे, सो आई विल एटलीस्ट लुक एट 5 year एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स। कमेंट्री पढ़ूंगा, हर साल जो बोल रहा है अगले साल वो कर रहा है नहीं कर रहा है, एक साल नहीं किया, 2 साल नहीं किया, और तीसरे साल तो करना ही है। हर साल बोलेगा और नहीं हो रहा है, तो देन यू नो समथिंग इज रॉन्ग। तो वो प्रॉब्लम। आपको मैनेजमेंट की क्वालिटी बताएगा। इफ यू रीड एटलीस्ट 5 years ऑफ एनुअल रिपोर्ट, इट ओके विल सर। डेफिनेटली गिव। या वन मोर थिंग सर, एनुअल रिपोर्ट भी लाइक आजकल तो 500 500 400 400 पेज की एनुअल रिपोर्ट होती है, तो व्हाट सेक्शंस डू यू सजेस्ट कि ये तो पढ़ना ही चाहिए? तो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस तो सबसे पढ़ना ही चाहिए। हम्म। बाकी बहुत सारी तो अभी आपको तो कैश फ्लो वगैरह ये सब तो ऐसे भी मिल जाता है, मतलब हाफ ईयरली स्क्रीनर पे और वो सब मिल मिल जाता जाता है। है, स्क्रीनर पे मिल जाता है। बहुत बार वेरीफाई हम लोग कर लेते हैं एनुअल रिपोर्ट से। कभी कभी हम्म। डेटा में देयर कुड बी मिस्टेक सम हो जाती मिस्टेक्स एंड ऑल दैट। तो ऑलवेज बेटर टू, मतलब वो फिर हम एनालिस्ट को है, कर बोलते लेते हैं, भाई देख ले एक बार, क्रॉस हैं। वेरीफाई कर ले। ऑलवेज बेटर टू गो विद द राइट डेटा। तो या। सो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड अभी उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत फ्लावरी लैंग्वेज यूज करते हैं, देयर आर कंसल्टेंट्स हु प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट, ये सब भी आपको पता है कि ये सब हो रहा है। या। बट ठीक है, वो फ्लावरी रिपोर्ट लिख लेगा, फ्लावरी लैंग्वेज लिख लेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन तो आना है ना इवेंचुअली। तो एग्री। आपने 2019 का एनुअल रिपोर्ट ले लिया, पढ़ लिया, 2020 में उसने क्या किया आप देख लो, फिर 2020 का रिपोर्ट पढ़ लो, और 2021 में क्या किया, पर कितना भी फ्लावरी लिखे, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन नहीं किया तो आपको पता चल जाएगा। आपको पता चलेगा। मैं बोल रहा हूँ एग्री। कि एक एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको स्टिल पिक्चर मिलेगा, लेकिन आप 5 साल का 7 साल का पढ़ोगे तो आपको पूरा वीडियो मिलेगा, या। मतलब विल गेट द कंप्लीट पिक्चर इज व्हाट आई मीन। यस यस। तो हम लोग फिर दूसरा, हम लोग मिनिमम 3 years के कॉन्कल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते ही है, जहाँ अवेलेबल हो। जहाँ नहीं है वहाँ पे थोड़ा मतलब एक फिर हमारा सेकेंडरी वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ कॉन्कॉल्स नहीं अवेलेबल है।
then it is lot of scuttlebust there. Then we will want to engage with the management, मिलना चाहेंगे उनको, या फिर एजीएम में जाएंगे, या वो सब अगर ये नहीं अवेलेबल है, ये दोनों ऑन कॉल ट्रांसक्रिप्ट मतलब और कौन कौन। एनुअल रिपोर्ट्स अगर सही अवेलेबल नहीं है तो आप यू विल गो टू फिर सेकेंडरी कि हम किस तरह से एब्सोल्युटली मिल सकते एब्सोल्युटली। पर कॉन कॉल्स ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने से आपको बहुत कुछ पता चल जाता है, मतलब देन लॉट ऑफ टाइम्स वी एक्चुअली डोंट इवन नीड टू मीट द मैनेजमेंट। हैं। या ठीक है। और क्योंकि उसमें मैनेजमेंट, पूरा आपको ओरा भी समझ में आता है, मैनेजमेंट किस तरह से जवाब देता है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। उनके तो बोलने का तरीका, एवरीथिंग एवरीथिंग कम्स इनटू एवरीथिंग। पिक्चर। और वही आप पढ़ते हो और सुनते हो, उसमें भी फर्क है। ओके। एग्री। आपको बॉडी लैंग्वेज ये, और वही एक जूम कॉल पे अगर कॉन कॉल हो रही है तो उसमें कुछ अलग आपको पता चलता है। एग्री। मतलब तो बहुत सारी चीजें सॉफ्ट पॉइंट्स है बेसिकली। वो एक्सपीरियंस के साथ आपको समझते हैं कि मैनेजमेंट का टोन क्या है, लहजा क्या है बोलने का, यू नो इजी कॉन्फिडेंट और इजी एरोगेंट, ये सब चीजें सुन के पता चलती है, ये आपको पढ़ के नहीं एग्री। पता चलेगी बहुत बार। तो ये सब चीजें हैं, जहां हो सके वहां सुनने की कोशिश करनी चाहिए। आप 1.25 1.5 पे रख के 1 घंटे का कॉल कॉल आप 35 मिनट 40 मिनट में 40 मिनट में एग्री। पूरा कर सकते हो बेसिकली। तो तो हम लोग वो देखते हैं। और ये फ्यूचर रिग्रेशन जैसे मैंने किया ना, कि हम लोग फ्यूचर पीईजी देखने की कोशिश करते हैं बेसिकली। तो फ्यूचर रिग्रेशन इसी के लिए क्या है आ कि भाई सकता है। क्या हो सकता है, इसमें क्या होने वाला है आगे, क्या लगता है। तो उसके लिए थोड़ा आपको कंपनी भी समझना है। और अगेन इसमें वही है, पहले 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि सपोज ये साल मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि मैं 3 साल के लिए 30% से ग्रो करूंगा, तो आपने हाँ, 5 साल की एनुअल रिपोर्ट और ये सब पढ़ी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बोलता है वो करता है कि नहीं करता है। तो आपको वॉक द कितना टॉक है या ट्रस्ट नहीं। करना है कि नहीं। और आपको एग्री। उसको कितना डिस्काउंट करना है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, एग्री। वो सब पता चल जाता है। ये पहले 2 पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूचर रिग्रेशन, बिकॉज स्टॉक प्राइस, स्टॉक आज आप ले रहे हो, पास्ट के हिसाब से पास्ट आपको बहुत सारी क्लूज देगा, बहुत सारे ये देगा, लेकिन अल्टीमेटली आपके रिटर्न्स तो बनेंगे फ्यूचर में क्या करने वाली कंपनी। तो फ्यूचर रिग्रेशन ऑफ इंडस्ट्री, ऑफ नंबर्स, ऑफ कंपनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। ओके। तो वो आपको मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी इतना ग्रो कर सकती है, कितना ग्रो दैट कर इज। सकती है, लगभग यस। एक्सपेक्टेड आपकी क्या हाँ। तो उसमें भी आप अलग अलग सिनेरियो बना रहे हो, बेयर केस, बेस केस सिनेरियो बना रहे हो, बेयर केस सिनेरियो बना लो, और बुल केस सिनेरियो, 3 सिनेरियो हम जनरली बनाते हैं। तो वो हम मतलब वो एक्सरसाइज भी करते हैं बेसिकली। सो वी मेक 3 सिनेरियो कि ये ओके। होगा, और फिर हम लोग बेयर केस सिनेरियो के हिसाब से जाके चलते हमारे वैल्यूएशन पैरामीटर में बैठता है तो जी हाँ मजा जी। आता है। मतलब हाँ। वो हम लोग देखते हैं कि हाँ यार बेयर केस सिनेरियो में भी इसमें सेंस बन रहा है। हाँ। तो देन it turns out to be more often than not a very good investment। गॉट तो इट। तो वो है। तो उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग प्लेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत लो प्रोमोटर होल्डिंग होगी तो हम लोग प्रिफर नहीं करते, बट देर आर एक्सेप्शंस। देर आर सम कंपनीज वेयर प्रोमोटर होल्डिंग विल बी लो, बिकॉज सपोज टेक्नोक्रेट प्रोमोटर था, उसके पास तो कैपिटल था नहीं, उसने कंपनी खड़ा किया या उसने बाय आउट किया पास्ट मैनेजमेंट से, उसका स्टेक लो हो सकता है, ऐसा हो नहीं हो सकता है। सकती है, उसके पीछे की कम है तो क्यों है। But most of the times you would want a good, 40% स्किन इन द गेम। plus holding is what uh, I would prefer, to be honest। और प्लेजिंग नहीं होनी चाहिए, प्लेजिंग होनी चाहिए तो मैक्सिमम हम लोग सिंगल डिजिट के ऊपर प्लेजिंग हो तो हम लोग थोड़ा प्रिफर नहीं करते। अगेन केस टू केस है, बट समथिंग विच इज लाइक लेट्स से 100% प्लेजिंग या 70% प्लेजिंग, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो वहां आप मतलब बड़ा पोजीशन नहीं बना सकते हो। एग्री। 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 सो दैट इज दैट। मतलब अल्टीमेटली आपको स्टॉक लेना है तो कुछ एक मतलब ये है कि बड़ा पोजीशन बना सकते हो या बड़ा पोजीशन बनने दे सकते हो। दो पॉसिबिलिटीज, आपने बड़ा 5% लिया है, लेकिन अगर वो स्टॉक मल्टीबैगर हो गया तो 15% आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है, होता भी है। तो उस हम्म। वक्त आप वो बहुत प्लेजिंग होगा तो आप यू विल गेट नर्वस कि यार 15% कल टूट गया और कुछ गलत हो गया तो मेरा बहुत बड़ा, इट्स वन नुकसान सिक्स हो ऑफ योर जाएगा। पोर्टफोलियो। सो सो दैट इज वाई दिस इज इम्पोर्टेंट टू सी के आप एक सर्टन 5% लेना है, 5% भी ले पाते कि नहीं, उसके लिए प्लेजिंग, और ये बड़ा हो गया तो मैं क्या करूंगा, वो भी सोचना एग्री। जरूरी है। तो उसके लिए प्लेजिंग इज इम्पोर्टेंट। मैनेजमेंट क्वालिटी शुड डेफिनेटली बी अबव एवरेज, मतलब जितना अच्छा हो उतना अच्छा है। और एक चीज हम लोगों ने रखी है, एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब हम लोग बिल्कुल, हम लोग हाथ ही नहीं लगाएंगे। मुझे कोई बोलते हैं कि भाई ये कंपनी आप क्या प्राइस में, मैं बोला मैं कोई प्राइस में नहीं लूंगा। मैं सही इफ आई बात। एम नॉट कंफर्टेबल विद द मैनेजमेंट,
और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, मैं कोई भी प्राइस में लूंगा ही नहीं. इट इज अ framework we have made, or Yes. and it has worked for us very well. Okay, and lot of it is happened when post we started Aurum Capital, because ultimately पहले आप खुद के लिए कर रहे थे, you could be reckless, Mhm. but when you are advising other people, your responsibility Mhm. increases. तो आप Yes. मतलब ये हमारे लिए पर्सनल इन्वेस्टिंग में भी बहुत हेल्प किया है. व्हेन वी पुट ऑल दिस सिस्टम्स इन प्लेस, स्क्रीनिंग में, ऑफ स्टॉक और टूल किट में हमने ये सब डाले, तो ये हमारे को हमने रियलाइज किया कि हमारी पर्सनल इन्वेस्टिंग में भी बहुत हेल्प किया. ऑफ कोर्स वी मिस यू नो सम स्टॉक जहाँ पे कुछ टर्न अराउंड हो गया, ये मे बी मैनेजमेंट एज अ चेंज ऑफ हार्ट और समथिंग, बट वो मैंने देखा है कि 10 में से एक में भी नहीं होता है. बाकी जो चोर है वो चोर ही रहता है ज्यादातर. ओके, हाँ, नेक्स्ट जेन आ गया, वो वांट्स टू क्लीन अप थिंग्स, ये सब चीजें कभी कभी होती है, तो वो उसमें बोलते हैं ना कि देयर इज अ चेंज ऑफ Exception to every मैनेजमेंट. case. हाँ, तो वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन या स्पेशल सिचुएशन जैसा कुछ हो जाता है. तो बट जनरली ये चीजों पे हम लोग ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमने बात की, वी आर वेरी वेरी कीन. मतलब अल्टीमेटली इट शुड, योर प्रॉफिट शुड ट्रांसलेट टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो, आना ही चाहिए Yes. इवेंचुअली. Yes. ओके, दैट लेवल शुड बी मैनेजेबल. मतलब दैट टू इक्विटी बहुत हाई होगा तो वो नहीं होना चाहिए, तो बिकॉज रिस्की बैड है साइकिल बैलेंस शीट. आया, बैड साइकिल आया, आप डेट सर्विस नहीं कर पाओगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कंपटीशन को पूरा स्टडी करना पड़ता है. मतलब यू हैव टू सी, is your company out of the top three या in that, not necessarily in size but in competitiveness. because कोई छोटा हो सकता है लेकिन वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, वो आगे जाके बड़ा होगा बिकॉज इज वेरी यस. कॉम्पिटिटिव. तो ऐसा जरूरी नहीं कि टॉप 3 सेल्स में हो या फिर टॉप 3 कॉम्पिटिटिवनेस में है कि नहीं हो. इसी एग्री. मतलब इज कॉस्ट यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छा है क्या उसका, कि ही कैन कम्पीट विद द बेस्ट. सो दैट ओके. वी हैव टू सी. ओके, फिर स्कटल बट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब हम लोग तो बिल्कुल प्लांट विजिट करेंगे, उसके बाद सप्लायर्स को जाके मिलेंगे, डीलर्स को मिलेंगे, पास एम्प्लॉय से बात करेंगे, ग्लास डोर पे जाएंगे, लिंक्डइन पे जाएंगे, ये सब हम लोग बिल्कुल करते हैं. ईपीएफ डेटा देखते हैं, जीएसटी डेटा देखते हैं, बहुत सारी चीजें. बहुत बार बहुत सारे फ्लैग्स आपको वहां मिल जाते हैं कि भाई सेल्स तो हो रहा है, लेकिन अभी इतना सेल्स हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयज ही नहीं है. ये सब चीजें बहुत बार आपको बैलेंस शीट में दिखती है, एग्री. और एनुअल रिपोर्ट में दिखती है कि एम्प्लॉयज तो इतने कम है लेकिन सेल्स इतना है. एम्प्लॉयज इतने सारे है लेकिन कंप्यूटर्स है नहीं, और कंपनी आईटी में है, तो कैसे हो रहा है. तो फिर मतलब ये बहुत सारे फ्लैग्स अल्टरनेटिव, आपको. हाँ, अल्टरनेटिव डेटा रिसर्च. हाँ, तो वो बहुत जरूरी है ये सब. मतलब स्कटल बट एंड ऑल्टरनेटिव रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस. तो फिर प्राइसिंग पावर है कि नहीं कंपनी के पास आपके, मतलब वो हमेशा कस्टमर के कस्टमर पे मोहताज नहीं है. मतलब कस्टमर जो बोलेगा वो प्राइस में उसको देना पड़े, तो जस्ट टू वो मिनट्स, पैसा जस्ट टू कभी बना मिनट्स. नहीं पाएगा. या या. ओके, सो वी वर ऑन बेसिकली प्राइसिंग पावर. ओके, या. डज द कंपनी हैव सम प्राइसिंग पावर एटलीस्ट. मतलब ऐसा नहीं है कि उसको उनका क्लाइंट मतलब हमेशा दबाते रखे, और मतलब अ, तो जब टाइम अच्छी आए तो यू शुड बी एबल टू कमांड सम प्रीमियम काइंड ऑफ, वैसा वैसा प्राइसिंग पावर होना चाहिए कंपनी के पास. एंट्री बैरियर हो सके तो होना चाहिए. इट कुड बी एनीथिंग, मतलब इट कुड बी बाय प्रोसेस, या चाहिए कुछ लोकेशन कंपनी में. है, लोकेशन है, कुछ भी. मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर दी है कंपनी में, कि दूसरों के लिए आना इतना आसान नहीं है और compete करना. अ, तो एंट्री बैरियर है कि नहीं है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ऑपरेटिंग लिवरेज है कि नहीं कंपनी में. बहुत बार ये होता है कि कंपनी ने कैपेक्स कर दिया है पूरा काफी, अभी 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में चल रही है, लेकिन ओवर अ पीरियड उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा, तो तो उससे वो भी मार्जिन देखना चाहिए. एक्सपेंशन होगा. हाँ, मार्केट एक्सपेंशन होगा. तो देयर उसमें ये है कि आपके फिक्स कॉस्ट तो वही लगने हैं, वेरिएबल कॉस्ट ही लगना है, लेकिन तो उसमें मार्जिन बढ़ने के बहुत चांस होते हैं. इफ योर एग्री. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन गोस फ्रॉम 50% टू 70%, आपके मार्जिन में इंप्रूवमेंट पक्का होता है. एग्री. तो वो देखना है. और स्केल एंड रेजिलियंस. स्केल मतलब ये है कि आपके मार्केट साइज में, मतलब
does it have a addressable market which is large enough, and also does the promoter have the quality to scale. हम लोग बहुत सारे लोग मतलब छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, एंड आई सीन ओवर द इयर्स बहुत सारे प्रोमोटर्स है, वो छोटे हैं तब तक अच्छा करते हैं, लेकिन वो बड़ा सोच ही नहीं अब पाते या कर ही नहीं पाते, बिकॉज उनको स्केलेबिलिटी का इशू होता है. दिस इज वन यस वेरी निग्लेक्टेड फैक्टर विच मैनी एनालिस्ट मिस. तो या स्केलेबिलिटी है कि नहीं प्रमोटर में, वो देखना चाहिए. अगर वो 20 साल से कर रहा है और अभी तक यार मतलब कहीं पहुंचा नहीं है, 50 करोड़ का ही सेल कर रहा है या कुछ, या तो वो इंडस्ट्री ऐसी है या फिर प्रमोटर में प्रॉब्लम है. या नो, यू सी दैट हैपन इन मैनी दिस थिंग कि वो कर ही नहीं पाएगा उसके आगे. तो वो आपको वो भी समझना जरूरी है. और एग्री रेजिलियंस इज बेसिकली के डाउन साइकिल आता है तो वो कैन ही स्टिल होल्ड ऑन, कैन ही स्टिल सर्वाइव. तो वो रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आपको जब स्क्रीनर डेटा देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि मार्जिन 2% हो गई, 3% हो गई, तो वो सर्वाइव कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है. तो वो सब उससे पता चलेगा. और मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूएशन, हमने उस पर तो काफी बात की है कि या वैल्यूएशन हमारे लिए ये सब कुछ हो गया, लेकिन वैल्यूएशन ठीक नहीं है तो वी विल लेट इट गो. मतलब वी आर नॉट ऑफ एग्री द बैंड के वी विल पे एनी वैल्यूएशन फॉर यस फॉर फॉर अ स्टार्टिंग. स्टार्टिंग वैल्यूएशन मैटर्स. स्टार्टिंग वैल्यूएशन बिल्कुल मैटर नहीं. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सेट ऑफ टूल किट जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं. आप हर चीज में अलग 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 चीजें आपको देखनी है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द डेटा टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में फिर उनका स्किल्स, चाहे वो बिजनेस करने की स्किल्स हो, चाहे आप स्केल स्केल रेजिलियंस टू कंपटीशन. तो एवरीथिंग ऑन द it's a very good slide which anybody who is into the markets can help and can create their own scenario. नाउ कमिंग टू सो आई थिंक मोटा मोटी अगर हमें ये समझ में आ गया कि अब कैसे हमको सेलेक्ट करना है, बिजनेस कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे स्क्रीन करना है स्टार्टिंग में, उसके बाद डिटेल में कैसे स्क्रीन करना है. नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि यू आर इनटू द मार्केट्स फ्रॉम सिंस लॉन्ग एंड इक्विटी मार्केट्स में अभी जो हम देखें पिछले 3-4 सालों में इतने सारे यंग इन्वेस्टर्स और बिगिनर्स मार्केट में आए हैं. सो what are so anybody who is practicing value investing, what are the mistakes they can जो आपने भी की over the period, जो आपने भी समझी कि वो कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो एक नए आदमी को अवॉइड करनी चाहिए while analyzing और while doing value investing. एक्सीलेंट क्वेश्चन. मतलब बहुत जरूरी है एंड वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन. सो आई हैव प्रिपेयर्ड समथिंग फॉर दिस आल्सो. कि सबसे पहले तो ये है कि एक इन्वेस्टर जो होता है उसको समझना है, दे हैव टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो. सो इन्वेस्टिंग में अब आप वैल्यू इन्वेस्टर हो सकते हो, आप ग्रोथ इन्वेस्टर हो Both सकते हो, investors. आप मोमेंटम इन्वेस्टर हो सकते हो, आप ट्रेडर हो सकते हो. तो हर एक के लिए अलग अलग स्किल्स लगती है. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. वैल्यू इन्वेस्टर के लिए मेरा मानना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस. ओके, पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अ वैल्यू इन्वेस्टर शुड हैव. Whereas a momentum investor or a trader or something, उसके लिए डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से. ओके, तो Yes. उनको डिसिप्लिन रहना है, बिकॉज वो 100 के पी पे लेगा, लेकिन तो फिर बराबर है, लेकिन हम्म उसके रिस्क मैकेनिज्म इन प्लेस है, तो वो निकल हम्म भी जाएगा. उसको स्टॉप लॉस इफ इज एबल टू मेंटेन, मतलब रिस्क आपने कंट्रोल करके रखी है. तो ये बहुत सारे लोग है, कैंसलिंग है, अलग अलग अप्रोचेज है, एंड या सभी अप्रोचेज में पैसे बनते हैं. मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं बनते हैं, हाँ कि हाँ सिर्फ हाँ वैल्यू इन्वेस्टिंग में बनते हैं. बट अगेन एवरीबडी इज वायर्ड डिफरेंटली, यस कि उसके लिए क्या सही है. मेरे लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग सही है, तो मेरे लिए पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो बहुत मैंने तो इम्पोर्टेंट. देखा है कि मोस्ट ऑफ माई, बहुत बार ऐसा होता है मैं ले रहा हूँ कुछ नहीं होता है, 2 साल कुछ नहीं होता और तीसरे साल सीधा 5 गुना हो गया. हाँ, तो रिटर्न्स लीनियर नहीं है, मतलब ये आपको पेशेंस रखना पड़ता है. यू लेट लॉट ऑफ टाइम्स यू हैव टू लेट द स्टोरी प्ले आउट. कभी कभी डिले हो जाता है. मतलब आप केमिकल में देखो, उनको लगता था कि मतलब 1 साल पहले लगता था कि अभी टर्न अराउंड आ जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं, और 4 क्वार्टर निकल गए, अभी और शायद 1-2 क्वार्टर निकल जाए. तो एग्री. पेशेंस आपको रखना है. 9 क्वार्टर खराब आ गए एक साथ, हम्म राइट. तो वो तो एक्सपेक्ट मैंने भी नहीं किया था, हमने भी नहीं किया था. तो उसमें आपने पेशेंस बना के रखा. अगेन समथिंग विच वाज चीप बिकेम मोर चीपर, तो आई एम अ काइंड ऑफ गाय हु विल बाय दैट. और या ऐड करूंगा मैं, बहुत सारे लोग लोअर एवरेजिंग नहीं करते, बट
मैंने तो जिंदगी में ज्यादा पैसा लोअर एवरेजिंग करके बनाया है, टू बी ऑनेस्ट। तो अगेन इट इज डिफरेंट दिस थिंग। हाँ, और एक मोमेंटम इन्वेस्टर है या ग्रोथ इन्वेस्टर है, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसने लोअर एवरेजिंग। बिकॉज आप 100 के पी पे ले रहे हो और 70 पे आया, तो 70 पे भी महंगा है वो। ओके, हाँ, तो आप लोगे तो आप फंस जाओगे। लेकिन मैंने 20 के पी पे लिया है और आज 12 के पी बस पे आ गया है और मुझे ग्रोथ 15% 20% दिख रहा है, तो मैं और लूंगा। तो मेरे लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बढ़ जाती है इनफैक्ट। एग्री। ओके, लेकिन वो 100 के पी पे लिया और अभी 70 हो गया, लेकिन ग्रोथ तो 15% ही है, तो आप अभी भी बहुत महंगा है, हाँ, तो आप ले नहीं पाओगे मतलब। तो मैं बोल रहा हूँ कि उसके लिए रिस्क मैकेनिज्म रखना जरूरी होता है। उसके लिए डिसिप्लिन रखना जरूरी है कि भाई वो नहीं, ये हैज टू कट इस पोजीशन ऑन टाइम। हम लोग तो गलती करके भी उसको सुधार लेते हैं, हमने कुछ गलत ले लिया सपोज कुछ, और बाद में जैसे केमिकल्स में इन हाइंडसाइड बोल सकते हैं कि गलती की, अगर 9 क्वार्टर पहले आपने लिया तो 9 क्वार्टर का डाउन साइड। लेकिन आपने उसको कैसे ये 9 क्वार्टर्स को नेविगेट किया है। बीच बीच में ऐसे टाइम आए कि स्टॉक्स बढ़ गए और वॉट एवर विदाउट रीजन। ओके, ग्राउंड पे तो कुछ है नहीं लेकिन बढ़ गए, आपने एडवांटेज ले लिया, आपने बेच दिया। देखो आपको मालूम है ग्राउंड में अभी कुछ नहीं हो रहा है, 2 क्वार्टर तो और खराब आने वाले हैं। तो और प्राइस ऐसा बढ़ गया है कि आप बेच सकते हो, ये मतलब ये सब tweaks you keep on learning and keep on doing it। तो how do you wait through these cycles and all that। तो एग्जांपल मैं केमिकल का दे रहा हूँ बिकॉज दिस इज अ लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस। ओके, या बट तो ये होता है कभी कभी। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू डू वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो या दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको सेक्टर और कंपनी की समझ होना बहुत ही जरूरी है। ओके, आप ट्रेडर हो तो आपको कुछ लेना देना नहीं है वो कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, उसका पी क्या है क्या नहीं। आप प्राइस, वॉल्यूम, जो भी आपके क्राइटेरिया उस पर आप ले रहे हो बेच रहे हो, आपको वो नहीं देखना है। पर आपको क्या देखना है, इसका क्या वॉल्यूम है, आपको अलग चीजें देखनी है। आप वो देख के उसको कर रहे हो। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टर को अलग चीजें देखनी है, उसको वो देखते रहना है और उसको कैलिब्रेट करते रहना है अपना पोजीशन। पेशेंस रखना है, पता है कि यार अभी नहीं हुआ पर आगे तो होगा। या तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल एक केमिकल कंपनी में 40% की मार्जिन, ओके, वो सस्टेनेबल नहीं है जो 2021 में है। आई सीन लॉट ऑफ कमोडिटी केमिकल हैविंग 35% 40% इबिटा मार्जिन 2021 में ये हुआ था। तो आपको ये भी समझना एग्री। चाहिए कि वो सस्टेनेबल नहीं है। ओके, फॉर अ कमोडिटी केमिकल। और उस वक्त आपने पीक मार्जिन पे और पीक वैल्यूएशन पे 35% के EBITDA मार्जिन पे आपने 40 टाइम्स दे दिया, तो इवन द बेस्ट केमिकल कंपनी इज डाउन 70%। ओके, तो ये होता है, तो इसके लिए बहुत हमको अच्छा। बहुत जरूरी है। तो वैल्यूएशन देखना तो बहुत जरूरी है, बट आपने लेने के बाद आपने 70% गिरने के बाद में, और हो सकता है कि और वहां से भी और गिरे, ये भी हो सकता है। बिकॉज अगर साइकिल खराब है तो वो है। तो जिस तरह से ये 35% की मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है ऊपर की। बहुत बार ये अभी बहुत सारी केमिकल कंपनी जो हमने 6 महीने पहले या कुछ ली है, उनमें मार्जिन 2% आ गई थी, 2% 3%। आपको ये भी समझना है कि वो 3% मार्जिन भी सस्टेनेबल नहीं है। ओके, वहां पे सही क्या होगा, बहुत सारे इनएफिशिएंट प्लेयर्स विल हैव टू स्टॉप देयर बिजनेस। ओके, दे विल शट देयर प्लांट्स और दे है। विल गो आउट ऑफ बिजनेस। ये होता है डिमांड, मतलब डिमांड, सॉरी, सप्लाई डिस्ट्रक्शन होता है इस वक्त। उसके या बाद मार्जिन वापस ऊपर आती है, तो वो भी समझना जरूरी है। तो उसका भी एडवांटेज लेते आना चाहिए आपको। तो बेसिकली, तो इसके लिए अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फॉर अ वैल्यू इन्वेस्टर। तो दैट इज इन्वेस्टर। द फर्स्ट थिंग, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। सेकेंड इज, मैंने ऑलरेडी बात की है पोर्टफोलियो एलोकेशन, उस पर हमने बात की है कि पोर्टफोलियो एलोकेशन होना चाहिए। कोई भी एक सेक्टर में बहुत बड़ा पोजीशन होगा, सपोज यू वर इन केमिकल्स 50%, तो अभी 9 क्वार्टर से बैंड बज गई तो आपकी मतलब यू वुड बी रियली रियली स्कैर्ड। एंड या मतलब आपका पोर्टफोलियो डाउन होने के बहुत चांसेस है। पर पेशेंस आपको होना ये हो, हाँ, या आज आप जाके मतलब कैपिटल गुड्स में आप 50-60% का बना रहे हो, ये पीक मार्जिन और पीक वैल्यूएशन पे, तो दैट कैन रिजल्ट इनटू एक्सीडेंट्स। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अ, उस पर एडयर कीजिए। और दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं हमेशा बोलता हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स को, फोमो और लॉस एवर्जन। चाहिए। आई सीन सो मेनी इन्वेस्टर जो लॉस लेंगे ही नहीं। सी ट्रेडर लोग लेते हैं लॉस, दे नो दैट दे हैव रिस्क मैकेनिज्म, दे विल टेक लॉस। बट जो इन्वेस्टर है जो टिप बेस्ड काम करते हैं, या जो भी मतलब किसी ने बोला लिया,
अपने को तो समझ नहीं है, लेकिन किसी ने बोला, मतलब कि निमिष ने बोला यार ये स्टॉक अच्छा है, ले लो, ले लिया। लेकिन उसको आगे वो, मतलब क्या करना है, तो थर्टी वो नहीं परसेंट गिर पता। गया, तो उसको क्या करना है मुझे मालूम नहीं। निमिष को पता है कि भाई हाँ ये 30% मेरे से गलती हो गई, मैं तो बेच के निकल रहा हूँ। ओके। हाँ। लेकिन उसको पता नहीं है कि 30% में क्या करना चाहिए मुझे। तो उसने आपको पूछा ना, तो आप बोलोगे भाई ये गलत हो गया, मैं लॉस बुक कर दिया हूँ। पर वो नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, 10 out of 9 investors, 9 out of 10 investors विल नॉट बुक लॉस। दे हैव अ लॉस एवर्जन। वो बोले यार मेरा भाव आ जाएगा तब निकलूंगा। तब बेचूंगा। ओके। तो ये लॉस एवर्जन बहुत ही गलत है, मतलब दिस विल ऑलवेज लीड यू टू अ पिट। या। जैसे टिप लीड्स टू अ पिट, वैसे लॉस एवर्जन आल्सो लीड्स टू अ पिट। मतलब वो आपको नीचे ही ले जाएगा, क्योंकि हम लोग लॉस अनलिमिटेड लेते हैं। वो 50% नीचे जाएगा तो भी बैठा रहेगा। लेकिन वही आपने उसको स्टॉक बताया था 100 में और वो 120 हो गया, तो वो बोलेगा 20% मिल रहा है, निकल जाता हूँ। तो कर जाए। आपने आपके प्रॉफिट तो कैप कर दिया और लॉस को अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कर दिया। तो वो स्ट्रेटेजी में आप कभी पैसा बनाएंगे। सो लॉस लेते आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फोमो नहीं करना है। मतलब अभी जैसे रिन्यूएबल से ये, मतलब इतना ज्यादा मैडनेस मुझे दिख रहा यूफोरिया है चल बहुत रहा सारे सेक्टर्स में, राइट। तो लोग जाके ले रहे, या मतलब ग्रीन एनर्जी, ये कुछ चीजें है, डेटा सेंटर, मतलब कोई भी वैल्यूएशन पे लोग ले रहे फोमो में, कि यार अरे यार ये कंपनी तो बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। मतलब आपने 100 पे देखी थी, आपने नहीं ली, 150 हो गई, 200 हो गई, 250 हो गई, फिर आप लास्ट में जाके 250 पे कूदोगे और वो टॉप निकलेगा, मतलब। तो ये है। बहुत बार होता है। सो फोमो अवॉइड करें, लॉस एवर्जन बिल्कुल ना रखें। हर इन्वेस्टर लॉस लेता ही है, समवेयर और दी अदर दे बुक लॉसेस। तो या। लॉस तो लेना है। आपके विनर्स को बड़े बनाओ और लूजर्स को छोटे लॉसेस को बनाओ। कम करो। दैट इज द मंत्रा टू वेल्थ क्रिएशन। मेक योर विनर्स बिग एंड लूजर्स स्मॉल। तो गॉट इट। गलती समझ गई तो आप बिल्कुल लॉस लो। आज भी हम लोग, जैसे मैं बोला ना, मेरे 1% पोजीशन से बहुत बार, तो 1% पोजीशन में मैंने लिया, समझा, बाद में मुझे लगा कि कुछ चेंज हो गया, मैंने कुछ गलती कर दी, वो लॉस में है, तो भी आई विल सेल, या। डेफिनेटली आई विल सेल। मतलब उसमें उसमें मैं सोचना भी नहीं है मुझे, बिकॉज मैंने 1%, मेरे को समझ गया। वो 1% का मैं सपोज 70% में निकला, तो मैंने 0.3 पोर्टफोलियो लेवल पे करवाया। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, इट्स नॉट गोइंग या। टू पुश मी बैक एट ऑल। मेरे बाकी स्टॉक बहुत बढ़ गए, तो मेरे को कोई वो नहीं है। बट इतना लॉस लेते इतना आना फर्क नहीं चाहिए, पड़ेगा। बहुत जरूरी है। वो कैपिटल आप कहीं और डिप्लॉय करोगे, वो ज्यादा आगे जाएगा। तो वो बोलते हैं ना, हारने वाले घोड़े पे आप बैठे रहोगे तो आप पीछे ही रहने वाले। एग्री तो एग्री एग्री। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नैरेटिव्स और स्टोरीफिकेशन पे मत जाओ। इतने नैरेटिव चल रहे हैं, और आप तो ट्विटर पे देखते ही होगे कि मतलब लोग, मतलब ऐसी स्टोरियां फैल रहे हैं आजकल कि क्या बोले, मतलब वो। हर कंपनी हर आईपीओ की स्टोरी है सर, हर हाँ। कंपनी। तो आईपीओ और जो भी एसएमई कंपनी, स्मॉल कैप कंपनीज, इतनी स्टोरियां चल रही है कि क्या बोले, मतलब। तो मैं तो बोलता हूँ कि बी वेरी वेरी केयरफुल। वैल्यूएशन आप फीड रखोगे, कुछ बेसिक पैरामीटर्स रखोगे, तो आप फंसोगे नहीं इस चीजों में, जो इस हमने डिस्कस भी फिल्ट्रेशन, की कि अगर आपने क्या आपका देखना चाहिए। फिल्ट्रेशन आपका बेटर होगा तो ऑटोमेटिक चीजें आपके पास सिलेक्टेड आएगी। बिल्कुल एंड बिल्कुल। देन नहीं, यू आप कैन रिजेक्ट कर दोगे ना, हाउ यू फिल्टर। तो और एक मैं बोल रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट आज की तारीख में, ये मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट सुपर पावर आपके पास है, तो दैट इज सेइंग नो। आपको ना बोलने आना चाहिए। यू वोंट बिलीव मी, मतलब मेरे पास 10 आइडियाज आती है, तो 9 तो मैं आउटराइट रिजेक्ट करता हूँ, एक को थोड़ा पढ़ के रिजेक्ट करता हूँ। मतलब ये सिचुएशन है आज की सही तारीख। ओके। बात है, सही तो एग्री तो सेइंग नो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन दिस मार्केट, जहाँ पे स्टोरीज और ये सब चल रही है, बिल्कुल। एग्री। वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट पीक मार्जिन, पीक मल्टीपल्स। उसमें हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे केमिकल्स 2021 में, स्टील, टाटा, मुझे याद है टाटा स्टील ने एक एक क्वार्टर में 38,000 रुपीज पर टन का EBITDA बताया था। इट इज नॉट सस्टेनेबल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दैट या। पर्टिकुलर क्वार्टर टाटा स्टील मेड हायर प्रॉफिट देन इवन रिलायंस। ओके। यस। यस आई नो। तो ये आपको समझना है कि ये पीक मार्जिन से ये सस्टेनेबल नहीं है, स्टील जैसी बेसिक कमोडिटी में। ओके। तो ये समझना चाहिए। पॉलीफिन्स, ओके, जो आप हिस्ट्री देख लो, मतलब वो इनके बैड साइकिल में 6% के मार्जिन होते हैं, और अच्छे साइकिल में 12% के मार्जिन। पर कोविड में जो एक इनको फिलिप मिला, और कोविड में एक टेलविंड मिला, मार्जिन 20%, 21% चले गए।
वो सस्टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल आपको समझना जरूरी है। और वहां से नहीं, क्या हुआ, क्रैश होके 3% पे आया सब मार्जिन, नीचे राइट। आ गए। हाँ, तो ये क्या होता है जब 20% के मार्जिन पे होता क्या है, ये बहुत सारी कैपेसिटीज आती है। सो व्हेन कंपनीज आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी, तो वो देखता है कि यार दूसरी बाजी मेरी कॉम्पिटिटर ने तो कैपेक्स डाल दिया, वो मेरे से आगे चला जाएगा, तो वो भी कैपेक्स डालता है। फिर उसको देख के दूसरा वाला कैपेक्स, सब लोग कैपेक्स मतलब एक्सपांड ओवर करते हैं। कैपेसिटी हो जाता सब एक्सपांड करते हैं, इतनी सारी आपकी कैपेसिटी आ जाती है, डिमांड तो आपकी 10% से ही ग्रो होने वाली है, 8%, 10% जो भी है, वट एवर इंडस्ट्री ग्रोथ इज आपका जो, तो और कैपेसिटी 40% से आ गई ऊपर, तो क्या होना है, मतलब आपका सीधा है। प्राइसेस क्रैश होने वाले, मार्जिन क्रैश होने वाले, ये हमेशा होते रहता है, दिस इज साइकिल, इट ऑलवेज साइकिल। हैपन। सो आपको डिमांड सप्लाई हमेशा देखते रहना है, और वो देखना है। तो पीक मार्जिन, पीक मल्टीपल पे इन्वेस्ट मत कीजिए। जैसे अभी के एग्जांपल में तो ट्रांसफॉर्मर में बोलूंगा, आई थिंक दीज आर पीक मार्जिन्स, दो आई होल्ड लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मर कंपनीज, आई विल वेरी ओपनली टेल यू दैट दीज आर काइंड ऑफ, आई थिंक दीज आर पीक मार्जिन्स एंड पीक मल्टीपल्स। ओके, तो इसमें आपको केयरफुल रहना चाहिए, मतलब आपका एग्जिट स्ट्रेटेजी तो होना चाहिए। एग्जिट स्ट्रेटेजी नई आपके नहीं। नई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी चाहिए, मैं भी अभी भी कुछ होल्ड कर रहा हूँ, बट आई एम ऑलवेज अलर्ट एंड ऑन द लुकआउट फॉर एग्जिट, मैं कभी भी बेच सकता हूँ वैसे टाइप। यस। तो यस। आपको ध्यान रखना जरूरी है। सोलर में देखो, मतलब कमोडिटी है, लेकिन फॉर वॉट एवर रीजन आज मार्जिन इतने हाई है, ये सस्टेनेबल नहीं है मेरे हिसाब से। अब बोल रहे हैं कि लोगों के प्लान्स आएंगे तो मार्जिन बढ़ेगा, हो सकता है साल 2 साल हो ये सब, लेकिन उसके बाद क्या। और ये साल 2 साल का वैल्यूएशन आपने ऑलरेडी दे दिया है क्या, ऑलरेडी ये जो आने वाला है, इज इट ऑलरेडी इन द प्राइस, यू हैव टू सी यस। दैट। So you have to be extremely careful when you go after these peak margins and peak multiples. तो एग्री। ये बहुत एक मतलब मैं एक नए इन्वेस्टर को बोलूंगा कि आप ध्यान रखिए ये चीज का। अभी सिक्लिकल्स की बात करते हैं, मेरे से हो रही है, और सिक्लिकल्स की बात नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो सिक्लिकल्स में लोग देखते हैं पी, बहुत बार बोले यार यार स्टॉक तो 5 के पी पे, पर आप समझो पी इज द वर्स्ट पैरामीटर टू लुक एट सिक्लिकल्स। ओके, बिकॉज अच्छे साइकिल में आपका अर्निंग्स नेगेटिव आर्टिफिशियली मतलब कम इंफ्लेटेड हो है। जाता है। ओके, अर्निंग्स बहुत हाई है तो आपका प्राइस मल्टीपल गिर जाएगा। अर्निंग नीचे होता है। ओके, तो मैं क्लासिक एग्जांपल देता हूँ कि 2016 में एक ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कंपनी का, ओके, प्राइस था 150 रुपया। ओके, और उसका पी था 150, क्योंकि अर्निंग थी 1 रुपी। या यही 2 साल बाद उसका प्राइस था 4500, 150 वाला 4500 हुआ, थर्टी पर टाइम्स। पी वॉज ओनली 5। ओके, सो व्हाट वाज चीपर, 150 वन पी फिफ्टी वाज मच वन चीपर फिफ्टी पी एक्चुअली, चीपर। यस। राइट, क्योंकि इसकी अर्निंग 1 रुपए से 865 रुपया गई। ओके, हम्म। एक सुपर साइकिल मिली, जो भी है, एक एक्सट्रीम एग्जांपल बता रहा हूँ, बट ये या हुआ है, दिस इज एग्जांपल विच हैज हैपेंड। ओके, या तो आज का पी क्या सस्ता है क्या, नहीं, बहुत महंगा है। अभी तो और बहुत 150 महंगा। का पी महंगा है क्या, नहीं, बहुत सस्ता है। सो पीक आपको मार्जिन्स। समझना पड़ेगा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ सिक्लिकल्स के साइक्लिकलिटी। लिए, अगर आप पी करने वाले हो तो नॉर्मलाइज पी करो, या अक्रॉस साइकिल्स का मार्जिन लेके उसके हिसाब से पी आप करो, और उसके बाद उसका रियल पी ढूंढो, मतलब यस। नॉर्मलाइज पी ढूंढो। अदरवाइज सो मैं हमेशा बोलता हूँ पी इज जस्ट अ बैड पैरामीटर। आप प्राइस टू बुक देखो या रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखो, दोज आर बेटर पैरामीटर्स फॉर सिक्लिकल्स। या तो जिस कंपनी में पी नहीं देखना है उसमें लोग पी देखते हैं, और कंपनीज लाइक एशियन पेंट जिसमें पी देखना चाहिए, बिकॉज इट इज द नॉन सिक्लिकल कंपनी। ओके, या इट इज जस्ट स्टेडी ग्रोथ कंपनीज, मार्जिन इतने वेवर नहीं होने वाले हैं हम्म। एनुअली एटलीस्ट देखोगे तो, मतलब वो या उतना ही मार्जिन करेगा, 1-2% इधर उधर, मतलब सिक्लिकल नहीं है बिजनेस, सिक्लिकलिटी बहुत लो है, कम है। जीरो तो नहीं होती है बट लो है। बहुत कम है, कम। जैसे कि इट इज अ नॉन सिक्लिकल इन दैट यस। सेंस। तो उसमें तो आपको पी देखना चाहिए, बिकॉज ये नॉन सिक्लिकल, पी देखना चाहिए, तो उसमें लोग पी नहीं देखते। मतलब 100 का पी आप देख रहे हो तो आपने देखना है कि पी के क्या बेसिस पे बैठ रहा है। तो जहाँ एग्री। पी देखना है वहां देखते नहीं है हम लोग। हम लोग बोले कि अच्छा। पी डजंट मैटर इन ग्रोथ कंपनी, ये बोलते हैं, ये नैरेटिव भी चलता है। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अंडरस्टैंडिंग, जैसे हमने जो एग्जांपल्स मैंने दिए थे कि स्टार्टिंग वैल्यूएशंस मैटर एंड ऑल दैट, तो उसमें आपने देखा कि बिजनेस साइकिल तो नहीं थी ये कंपनी में, लेकिन मार्केट साइकिल थी। मार्केट सही। ओके, सो आपको बिजनेस साइकिल और मार्केट साइकिल दोनों समझना पड़ेगा। ओके, फॉर लॉट ऑफ कंपनीज मार्केट साइकिल्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ कंपनीज एंड ऑल दैट, मार्केट साइकिल समझना बहुत जरूरी है। और मैंने यस। आपको बेसिक सिंपल चीजें बताई कि कैसे आप समझ सकते हैं मार्केट साइकिल,
कि when your your 10-year stock price CAGR has run far ahead of profits, गैप बहुत बड़ा है, तो फिर वो करेक्शन आएगा। ये मार्केट साइकिल समझने की टेक्निक्स है, Yeah. तो वो समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस साइकिल तो आपको मार्जिन से समझ Yes. जाए, तो वो एक इम्पोर्टेंट है। और हम लोगों ने बात की ऑलरेडी, आई हैव रिटन आल्सो जैसे ये स्टार्टिंग वैल्यूएशन मैटर, वो हमने बात की ऑलरेडी, Agree. और वो बहुत मैटर करता है मेरे हिसाब से। So this is all I wanted to share with all the So, new sir, investors. to conclude this, the patience, आपकी starting valuations, a cyclicality of the stock, understanding of the business, understanding of the management, and your, बाकी मतलब ये सारी चीजें अगर हम अगर एक कंपनी में समझ जाएं तो इट विल बी गुड। अदरवाइज बीइंग ए वैल्यू इन्वेस्टर आल्सो यू कैन फेल, कि आप Absolutely. एक पीक मार्जिन्स में खरीद लोगे और तो फिर बाद में आपको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा, लाइक व्हाट हैपेंड इन द एशियन पेंट इन ओवर लास्ट 3 years। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन अर्ली स्टेज इन्वेस्टर और ये बिगिनर के लिए है कि हाउ दे कैन अवॉइड द मिस्टेक्स इन द वैल्यू इन्वेस्टिंग। I think, sir, this is the last question. I will not take much of your time. With the rise of, a lot of new technology like AI आ गया है, quant model आ गया है, momentum में बहुत सारी strategies आ गई है market में. What are the core principles which you think are timeless? Because, value investing for Benjamin Graham is also value investing. For us also, it's value investing. How value investing evolved around this technology period, and how you see the changes happening in the Indian markets, with the use of technology. नहीं, आई थिंक विद टेक्नोलॉजी, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो थोड़ा टेक्नोलॉजी मुझे भी समझता है वगैरह। तो वी आर Hmm. यूजिंग एआई फॉर Okay. कटिंग लॉट ऑफ आवर वर्क। मतलब जैसे कॉन कॉल जो मुझे 1 घंटा सुनना पड़ता था, वो अभी मैं एआई के थ्रू आई कैन पार्स इट फार सूनर, आई कैन डू मच मोर वर्क। बट देन उसमें भी ये लिमिटेशंस है। अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी विल गिव यू द आउटपुट, आप इनपुट कैसा देंगे उस पर। आपने गार्बेज रिपोर्ट दी और उससे आपने इन्फ्लुएंस मांगा, तो वो आपको गलत यही देने वाला है, मतलब। Yes. तो इनपुट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये चीज मैं बोलना चाहता हूँ। ऑल दोज पीपल हु आर यूजिंग एआई, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस आर ऑल इम्पोर्टेंट। Also, तो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अभी, एल्गोज एंड ऑल दैट, ये सब हो रही है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग वगैरह हो रही है। अब यार ये तो हम तो कर नहीं सकते, इज व्हाट आई थिंक, बिकॉज वो कहीं ना कहीं हम आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा इफ यू आर अ वैल्यू इन्वेस्टर। तो एटलीस्ट आई एम नॉट डूइंग एनी ऑफ दीज थिंग्स, दिस थिंग। टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग, ओके, वेरी एक्सटेंसिवली, बट ये जो चीजें है, आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सक्सेसफुल डूइंग दिस एल्गोरिथम लिख के, और ये ट्रेडिंग है। बट मैं तो ये सोचता हूँ कि ये हमारे लिए गॉड सेंड है, बिकॉज मैं जो सोच नहीं सकता था वो प्राइस में एग्जिट मिलते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। तो आई वेलकम ऑल दिस, दो आई डोंट यूज right. टेक्निकल्स, आई डोंट यूज एल्गोस, बिल्कुल मैं यूज नहीं करता हूँ। प्लेन वैनिला वैल्यू इन्वेस्टिंग यूज करते हैं। Okay. और बेसिकली सिर्फ यही है कि आपको एसेट वैल्यू करने को आना चाहिए। यू आर व्हेनेवर यू आर बाइंग अ स्टॉक, यू आर बाइंग सम एसेट, ओके। आपको Yes. एसेट वैल्यू करने को आता है, अगर सीख सकते हो तो सीख लो। आप एसेट डिस्काउंटेड प्राइस टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू ले रहे हो, तो आपका पैसा बनने का चांस अच्छा है, ओके। 9 out of 10 times you will make money if you do all these things right। एक आध बार कुछ गलत होगा, मतलब, Uh, बट ठीक है आपके, दैट्स वाई डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। Exceptions are always there. तो वो एक आध होता ही है मिस्टेक, बट वो Hmm. मिस्टेक को आपको समझ के उसको काट देना है जल्दी। तो Yeah. मेरा ये बोलना है कि आपके आपके 1% पोजीशन में आप मैक्सिमम कितना खोने वाले, 1%। बट यही 1% पोजीशन, प्लस एज्यूम के 1% ही है, लेकिन वो 10 गुना हो गई तो आपका 10% होता है सीधा, ओके। तो सो मैच इज ऑन योर साइड, बिकॉज आप स्टॉक में गंवाने के लिए 100 रुपए का स्टॉक लिया तो आप गंवाने को 100 रुपया ही है, लेकिन वो 1000 हुआ तो आपको 900 रुपया मिलना है उसमें। तो मैच इज ऑन योर साइड, सी। तो इसके लिए मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना मुझे नहीं लगता है डिफिकल्ट है। अगर आपने सब चीजें सही ये रखी तो सही मैं तो की बोलता हूँ इट इज इम्पॉसिबल टू लूज मनी। शॉर्ट पीरियड्स में जाएंगे पैसे वगैरह, बट आपका हॉरिजन लॉन्ग टर्म है। पीरियड में पैसा बन जाएगा।
आपने ये काम करे है, सब ठीक करे है, आपने आपके प्रिंसिपल्स रखे हैं, आपने प्रोसेस फॉलो किया है, तो चांसेस ऑफ लूजिंग मनी ओवर अ लॉन्गर पीरियड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ओके सर, अगर कुछ वेबसाइट्स अगर आप बता पाएं जो आप यूज कर रहे हैं एआई की, या आप खुद से ही कुछ करते हैं? नहीं, सो नोटबुक एलएम हम यूज करते हैं काफी, परप्लेक्सिटी यूज करते हैं, चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, ये तीन तो हम यूज कर रहे हैं। ओके। तीन यूज करते हैं और इसके लिए बस? हम लोग स्क्रीनर काफी यूज करते हैं, कुछ हद तीनों तक। तो इट्स वेरी वेरी हाँ, ब्यूटीफुल। कुछ हद तक ट्रेंड यूज करते हैं हम लोग। ओके। तो बस ये, पर स्किनर की सिंप्लिसिटी जितनी सिंप्लिसिटी कहीं नहीं है। सिटी कहीं नहीं। हाँ, तो एग्री, टोटली एग्री। तो सो इट इज वेरी 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 गुड टूल फॉर अस। मतलब हम लोग जो आज से मतलब 10 साल पहले हम जितनी कंपनी स्टडी कर पाते थे, जितनी इंडस्ट्री स्टडी कर पाते, उससे कई गुना ज्यादा कर पाते हैं अब, बिकॉज ऑफ ऑल दिस टूल्स। यस, एग्री, completely agree sir. I think any advice you want to give sir for the investors or for the audience out there? बस यही है, आप ग्राउंडेड रहो। एंड वन मोर थिंग, एक 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 चीज मैं भूल गया बोलने का, कि लक का इम्पोर्टेंस। ओके, लक का इम्पोर्टेंस काफी है। कोई कुछ भी बोले, मतलब मेरा आज का सबसे बड़ा विनर, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा एक स्टॉक जो मैंने 3-4 साल पहले लिया था वो 80x हो जाएगा। ओके, आई हैड नेवर थॉट, टू बी ऑनेस्ट, आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ये मार्केट की देन है, ये मेरा कुछ नहीं। हाँ ठीक है, मैंने लिया वो ठीक है, और मैं काफी हद तक उसको राइड भी कर पाया, वो मेरा बोल सकते हैं कि ठीक है, आई हैव डन फ्यू थिंग्स राइट। बट ये रिटर्न तो मुझे मार्केट ने दिया है, टेलविंड्स ने दिया है, प्रोमोटर्स के एग्जीक्यूशन की वजह से मुझे मिला है। ओके, तो मैं उसमें मेरे लक को मानता हूँ, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि लक आप कैसे, लक आपको बनाने की कोशिश करनी चाहिए, तो अच्छा काम करोगे आप, लोगों को हेल्प करोगे, आप नॉलेज डिसमिनेट करोगे, आई थिंक इट कम्स बैक टू यू इन फॉर्म ऑफ लक। सो आई थिंक उसका मतलब लक का इम्पोर्टेंस को बिल्कुल मानना चाहिए। Agree, agree, agree. So thank you so much, sir. It's nice interacting with you. Thank you so much for your श्योर, time. ग्रेट, And let's meet and catch up again, sir. श्योर, Whenever you have time. जो questions अगर आते हैं, anybody who want to ask anything, you can put in the comment section. So I'll ask with sir and we'll give you the answers. Thank you so much. Thank you so much, ग्रेट। everybody, for listening.